Physics optional, right? Everybody has made up their mind to opt for the physics optional, or still there is someone who is having doubt about choosing the subject? My first question is that is there anybody sitting in the class who has got any doubt or opting for the physics as an optional? Because physics is an optional subject of, optional means subject of choice. When I started this course, before that I was also a student. And why I started teaching physics? Because physics was a subject of my first choice. It was my first subject. During my time there used to be two optionals, and one optional was there in the prelims also. Right now in the prelims there is no optional. During my time there was an optional in prelims. Whatever subject you used to opt in the prelims, that was called your first optional. My second optional was mathematics, and mathematics goes very well with the physics. That is why still 1/3 courses of mathematics in my institute are taught by me only. Still I teach mathematics, and I am a good teacher of physics because one of the reasons for being good in physics is that your mathematical background has to be good. The way you are taking any subject, if you are writing history or political science or your economics, then you, in whatever medium you are going to write that paper, you have to be good in that language. If you are taking the exam in English medium, then you have to have the command over the English. If you are taking the exam in, let us say, Tamil medium, then you should have command over the Tamil. Not that your spellings in Tamil are wrong of Tamil letters and you are expecting that you are going to get good marks in something where the Tamil, it has to be written in Tamil. Similar way, physics is written into the language of maths. So I say many of the times when I say many advantages of physics, one of the great advantages of physics is that it is a language neutral subject. Whether you write in Hindi or you write in Marathi or you write in Tamil, I am going to check only dp by dt del by t v2 minus v1. If I want to check what is Clausius-Clapeyron equation, then all standard things of Clausius-Clapeyron equation are in that alphabet which can be easily followed. There is no notation in Hindi, no notation in Urdu for del p by del t v is equal to del s by del vt or whatever. That has to be written into the same standard notations, and derivation is standard. Only one or two lines may be in Hindi, Marathi, Tamil or something or other. So subject is language neutral. I call subject is language neutral. It doesn't depend upon language. Only language in which physics is written is maths. So good background of mathematics is essential. What is good background? Nothing. Whosoever is deciding to opt for the physics has got that much background. Without background, no one decides to opt for physics. Physics is an elitist subject. It is not the subject which is taken by any Tom, Dick and Harry. If you are sitting here, either you are a BSc graduate or you are a master, higher degree than that, or you are engineering graduate. Whatever qualifications you come from, you are familiar with basics of mathematics. Everybody knows differentiation, everybody knows very well integration, everybody is aware with the vector calculus. If something is required, we will keep on building up along with the class. But try to understand mathematics is, many of the times my oft repeated statement is, mathematics is secondary and tertiary. Never think language of the subject is maths. Everything is written in the math to do the maths. You have to know each and every step, because many of the times I have to cut down the maths and I have to focus on physics, because in this exam to the point answer is important. Yesterday also I was making this point, today also I am making this important point, that how an answer is presented, that may make a difference of 10 to 15% of the marks. And space is very important. This is the exam where you have to answer about 19 to 20 questions. You need not answer 5 questions. Basically 5 questions are spread into how many parts? How many full questions? There are 19 to 20 questions. ये याद रखो पहली बात है.
In any paper, any optional, not only physics, any optional, there are 2 papers, and in both the papers, any optional, this is thumb rule of this exam, any optional, there are 2 papers, and both the papers are 250 marks each. And 250 marks each are divided into 2 sections, section A and section B. There are total overall 8 questions. Out of 8 questions, one need to do only 5. Out of 8, one need to do only 5. Good. And every question is a total paper. One paper means how many marks? What is the maximum marks? 250. So one question is of what marks? 50 marks. 8 questions are there. Total paper is of 400 marks. But out of 400 marks, which you need to attempt is how many marks? Only 250 marks you need to attempt. And typically highest in physics optional in the last 10 years or more than 10 years is typically 165, 170. That's it. ये बात भी दिमाग से बांध लो कि हाईएस्ट कितना आता है किसी भी पेपर में 165 से 170 आता है और हाईएस्ट जिसका आता है उसका मतलब don't think that he has made only 80% or 75% paper correct. His paper is correct more than 95%. More than 95% papers are correct. Then the score which you get in the mark sheet, real mark sheet, is 65 to 70. 70% is also rarest of rare. Never. In fact, in last 10 years, no one has scored 70. 70%, you know what? What do I mean by 70? 70% out of 500? 350 marks. Highest has been 322, 326. Highest marks in the last 12 years have been what? 326. This year what is the highest? 318. And yesterday also I told what are the marks of the first ranker in the optional? 273. Yesterday we invited Abhishek Sharma. What was his marks? 274. And 274 marks person have got 38 rank. Correct? So 270, anything above 250 is good marks. 250 means you are not going to fail the exam due to optional. In physics, 275 is easily achievable. Like whatever is almost average marks in physics is the best marks in any other optional. Whatever the 270, if someone gets 274 or 275 marks, कॉलर उठा के ऊंचा करके नहीं कह सकता कि मैंने फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स ले लिए. वो फिजिक्स के कितने मार्क्स हैं? They are average marks for physics, 275. But for any other subject, 273, 274, 275 are what? Dream marks, highest marks. That is the beauty of the subject. Correct? So first point I made, that optional is language neutral. It does not depend upon your knowledge of Hindi, English, Tamil or something. Only your knowledge of physics is to be checked. And I will keep on repeating this statement every time, that mathematics is secondary or tertiary, because यहाँ पर मैथ्स को क्या करना होता है? कट गायब करना होता है. गायब करने के लिए जाना सब कुछ चाहिए. अब मुझे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करके दिखाना नहीं है तुमको, बिकॉज एट योर लेवल वंस यू आर क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स एंड टेकिंग द मेंस एग्जाम, आई कैन विजुलाइज कि आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, आपको इंटीग्रेशन करना आता है. तो एक पैराग्राफ अगर डिफरेंशिएशन करके मुझे लिखना है, सेंट्रल फोर्स मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, so equation of motion has to start from mass into acceleration is force, vector format. And r theta quadrant में क्या है acceleration? r double dot minus r theta dot square. So m r double dot minus r theta dot square is f of r. तुरंत लिखूंगा changing r is equal to 1 by u, equation reduces to u plus d2u by d theta 2 is equal to minus m of f u upon j square u square. अब इसमें मूर्ख की तरह अगर तुमने एक पेज भर दिया ना, तो मैं समझूंगा तुम क्या हो? गधा हो. इस एग्जाम के लेवल को समझ नहीं पाए, ना तुम्हारे पास इतना स्पेस दिया होगा यूपीएससी के क्वेश्चन. अच्छा एक बार और बताऊं, यूपीएससी का जो पेपर होता है ना आज की डेट में, उसमें पेपर क्वेश्चन जो होता है बुकलेट में प्रिंटेड होता है. ये बुकलेट है ना, आंसर बुकलेट, यहां पर क्वेश्चन प्रिंट होगा. इफ इट इज 10 मार्क क्वेश्चन, यू विल बी टिपिकली गेटिंग 1 पेज और 1.5 पेज, नेवर मोर देन 1.5 पेज स्पेस for a 10 mark question, and complete answer, every information about that answer, which I call in single word holistic answer. I will explain, not right now, I may not explain in the first class, I will explain in due course of time what is holistic answer. Holistic answer, proper introduction, proper broad body with application, last part interpretation of the answer. Even if there is a numerical answer,
What is the interpretation of that answer? With proper unit and dimensions, if that is written, then I give 65% marks. Otherwise, for every correct answer, bookish answer written in any other exam, in this exam, that answer fetches only 55% marks. जो अभी तक जो तुम न्यूमेरिकल का आंसर निकाल के आए हो, मैं जब कॉपी जांचूंगा तुम्हारी पहली बार, तो मैं कितने मार्क्स देने जा रहा हूं तुमको? जस्ट 55%. जब करेक्ट है, आंसर इज मैचिंग विद माई आंसर, आई एम गोइंग टू गिव यू 55. अबव 55% कैसे दूंगा मैं? धीरे धीरे, एवरी क्लास आई विल कीप ऑन टेलिंग यू व्हाट answer you will add, what value you will add to that answer, so that it answer becomes 6 marker, how 6.5 mark, how 7 marker. ये सब में क्लास में I keep on teaching in due course of time. पहली बात, और कल भी अभिषेक ने भी कही थी, मैं भी कह देता हूँ, पेपर में 120, ये जो क्वालिटी की बात है कि 6 कैसे आएगा, 6.5 कैसे आएगा, 7 कैसे आएगा, ये अभी इस लेवल में तुम्हारा डिस्कशन का आइटम ही नहीं है मेरी नज़र में. ये कब स्टार्ट होता है? जब आपका 125-50% पूरे पेपर में आने लायक हो जाता है टेस्ट सीरीज में, देन द क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी कम्स. बिफोर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस यू आर स्टार्टिंग एट जीरो लेवल, योर फोकस मस्ट बी हाउ टू मैनेज द इंटायर सिलेबस. और व्हेन आई से मैनेज द इंटायर सिलेबस, दैट मीन्स एवरी डेरिवेशन, एवरी रिजल्ट मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप्स. आंख बंद करके ओढ़ना और बिछाना होगा. और देखो, ये नहीं कि मैं 130 बैच से पढ़ा रहा हूं, मैं जब पढ़ाना चालू किया था 98 में, तभी भी मुझे सारे डेरिवेशन सब कुछ फिंगर टिप्स में था, और यही मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था. और जो भी टॉप करके आता है इस एग्जाम में, जिसको भी 275 मार्क्स प्लस आता है, और अभी हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, 1 जून से पहला टेस्ट होगा, उसमें भी जिनको हाईएस्ट आएगा आप देख लीजिएगा, कभी उनसे इंटरेक्ट करके देखिए. Whosoever is getting 130 plus marks, they have got complete command over the syllabus. जो बुकिश आंसर है, कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया, डेरिवेशन आ गया, फार्मूला सब्स्टिट्यूशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गई, तुरंत छाप देते हैं जाके. जो इनोवेटिव क्वेश्चन होता है, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर, नॉट ऑल क्वेश्चंस आर बुकिश, नॉट दैट ऑल क्वेश्चंस हैव बीन borrowed from the notes or borrowed from any standard textbook. In every question paper, at least there are 2-3 questions, 3-4 questions which are new, which makes a difference between highest markers and average scorers. Every paper. But because there is a beauty of the question paper, there are 8 questions. Out of 8 you need to do 5. So if you have taken advantage, you have done lot of efforts, that you have whole syllabus is you have mastered, then you can omit that new questions and focus on that, because every question is physics, language neutral, questions are objective, no subjectivity. So any 5 questions you attempt, every question is equally scoring, so you can subvert that thing. Your innovative nature of questions also can be subverted. How it can be subverted? Once you have mastered the entire syllabus. So first focus, first advice is that whatever is being done into the class, try to do those derivations, because here not that things are difficult, not at all. Subject is nothing but the extension of class 12th board. This exam, according to me, is not an IIT JEE kind of exam. If anybody thinks that it is advanced like exam or any engineering entrance kind of exam, not at all. This exam is typically a university exam. The kind of answers you are writing in BSc exam, MSc exam, similar kind of answers you have to write, but little value addition. That will easily come provided you master the entire syllabus. First of all, you have to master the entire syllabus. That must be the focus. Okay, so first point I said subject is language neutral. Second point I said language subject is objective. So it doesn't depends on the whims and fancies of the examiner, whether examiner likes your answer or you does not like your answer. But if your answer is correct, minimum marks which I am going to give you 55 to 60%. 55 and 60%, there is very thin line. I can give you 60% also, I can give you 55% also, depends upon how nicely you are presented. कट्टस पिट्टस नहीं है, neat and clean है, 60% तो दूंगा ही दूंगा. वैल्यू एडिशन का क्वेश्चन है, कुछ अच्छा सा एक लाइन इंट्रोडक्शन लिख दिया है, डिफाइन कर दिया है कि आई एम आस्किंग समथिंग so that this force is a conservative force and find out the scalar potential. Then first I expect that you have to define what is conservative system or what is conservative force. Then when you have put that curl of f is 0 or
defined f is equal to minus get, you calculated the potential function, it is correct. Then afterwards you have given me certain last part, after the numerical certain interpretation to that answer, I can give you 6.5. There is little difference. 5.5 and 6 only difference is आप presentation के अच्छे से present किया हुआ है, कट्टस पिट्टस नहीं करी हुई है तो 6 दे दूंगा, काट पीट के लिखा हुआ है आंसर करेक्ट है, 5.5 तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा. ये फिजिक्स की ब्यूटी है. बाकी किसी सब्जेक्ट में आपको 55% 60% मार्क्स भी मिलेगा, नॉट नेसेसरी. ना तो जीएस में मिलता है ना बाकी किसी में मिलता है, बट फिजिक्स में देयर इज एब्सोल्युटली नो फाइट ऑफ गेटिंग 55% टू 60% मार्क्स इन दिस. अगर इफ यू आर गेटिंग 60% मार्क्स देन व्हाट शुड बी स्कोर? 150. 50% अगर मार्क्स आ रहे हैं, आपको 60% मार्क्स आ रहे हैं तो कितना स्कोर आ जाना चाहिए? 250 में से 150. 150 तो आउटस्टैंडिंग मार्क्स हैं. रेयरली पीपल गेट, दैट मीन्स नो वन इज एबल टू मेक the entire question paper correct. The people who get 165 marks, 170 marks also, they also make 225, 230 to maximum 235 marks. Every person under examination like conditions makes a mistake for 10 to 15 marks. जैसे कल टॉपर आएगा तो 50 मार्क्स का छूट गया, किसी का गलत हो जाता है, किसी का छूट जाता है. No one can make the entire paper correct even when you know. Good paper is not at all difficult. When I started teaching, at that time also I promised. Now also I am promising. I am the one of the most respected and trusted teachers of civil service examination. Why? Because whatever I say that happens. 5 क्वेश्चन मेरे क्लास से हर बार आते हैं. 8 क्वेश्चन हैं, 8 में से 5 सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ लो और समझ लो. पढ़ना नहीं, क्योंकि समझना है. समझ गए तो 5 क्वेश्चन की कोई फाइट नहीं है. एब्सोल्युटली देयर इज नो फाइट ऑफ 5 क्वेश्चन बिकॉज देयर इज अ स्टिल चॉइस ऑफ 3 क्वेश्चंस. सो आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज हियर आई एम नॉट टीचिंग फॉर योर एनी एकेडमिक एग्जाम. पर्पज ऑफ दिस क्लास इज टू मेक यू क्वालिफाई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, हाउ टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. माई ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर. Here I am not teaching in IIT or teaching in any engineering college or teaching in any university is different, because their purpose is to make you learn the subject. My purpose is not to make you learn the subject. Many of you are not doing graduation. You have already done graduation. You have already done post graduation. You have already done MTech. You have already done, many people are you have done doing PhD or even have done PhD. This graduation is a minimum qualification required for this exam. Correct? So in college if you are studying, you are undergoing graduation. कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं. यहाँ तो सब ग्रेजुएट करके आए हैं. ग्रेजुएट किया हुआ है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है. और हमें कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है. तो ये नहीं है कि फैमिलियर नहीं हो. माई बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट इज दैट एवरीबडी इज फैमिलियर विद द थिंग. आई हैव टू डू दैट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिमाग में कहीं ना कहीं तो है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं है. माई स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, दैट देयर इज नथिंग इन द सिलेबस व्हिच यू हैव नॉट गॉन थ्रू. यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू एंटायर सिलेबस. यू मे हैव फॉरगेटन. 2 साल पहले पढ़ा था, 3 साल पहले पढ़ा था, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो ये तो मैं पूछ लूँ 1 हफ्ते पहले कौन से कपड़ा पहना था और कौन सा खाना खाया था, कोई बता सकता है? जरूरत पड़ेगी तो अभी दिमाग लगाओगे तो मालूम पड़ जाएगा 3 दिन पहले कौन सा कपड़ा पहना था मैंने, 3 दिन पहले क्या खाना खाया था. जब दिमाग को प्रेशर डालोगे तभी मालूम पड़ेगा. अगर दिमाग को प्रेशर नहीं डालोगे तो ये भी नहीं जाना कि 3 दिन पहले कौन सा कपड़ा पहना था मैंने. तो कुछ नहीं है, दिमाग को कंडीशन करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? अपने माइंड को कंडीशन करना है. तो पहली कंडीशनिंग है कि याद करना है. जो जो सिलेबस का कंटेंट है उसको मास्टर करना है. पहला स्टेप है यू हैव टू रिमेंबर द सिलेबस, बिकॉज एनी टेक्स्ट बुक, लाइक इफ आई से लेट अस टॉक अबाउट मैकेनिक्स, एनी बुक ऑफ मैकेनिक्स विल हैव हाउ मेनी पेजेस? 600 पेजेस. और मेरे नोट्स हैं वो 100 पेज से ज़्यादा के नहीं है. उसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व है, सब कुछ है. 100 पेजेस. माई नोट्स ऑफ एनी सब्जेक्ट आर नॉट मोर देन 100 पेजेस एंड द टेक्स्ट बुक इज 600 pages. That means 500 pages are not relevant. Simple. 500 pages are not relevant. And purpose of anyone in this class is not to become a scholar of physics. Not at all. What is the objective? To get the excellent marks, outstanding marks in civil services examination. That's it. So how to score best marks in this exam? I know very well. मेरे से बढ़िया कोई नहीं जानता है. इस चीज को मेरे से बढ़िया टॉपर नहीं जानता है. क्योंकि टॉपर किस 1 साल का टॉपर है.
अगली बार हो सकता है तो कुछ और मार्क्स आ जाए, लेकिन मैं इस काम को कर रहा हूं मोर देन 26 years. I've been interacting with all toppers, whatever kind of ones. I have known the nature of subject, what kind of questions are asked in the exam, what kind of answers have faced, what kind of marks in the real exam. So all those things I will keep on sharing every day. My purpose is to make you score highest marks in the subject. Having said that, not everybody in the class qualifies for the exam. If there are 21 people sitting into the class, hardly 1/3 are competent. 2/3 को तो फेल हो ही जाना है. ये पहली चीज बता दे रहा हूं, 2/3 को तो फेल हो ही जाना है, ये नेचर है. अगर क्लास में 1/3 पास हो रहे तो कितना सक्सेस रेट हो गया? 33% हो गया. इससे ज्यादा तो सक्सेस रेट किसी सब्जेक्ट का नहीं है. Success rate of the subject is 10 to 15%. It is one of the best subject. Success rate is just 10 to 15%. 25 to 30% people get an interview call. Physics is the best subject because 25 to 30% people get an interview call. After interview call, 10 to 15% people make it, because after this final success rate is 2.1 to 1. The people who qualify for the mains, प्रीलिम्स में कितने पास करते मालूम है सबको? अभी जो प्रीलिम का एग्जाम दिया तुमने, उसमें कितने लोग पास करेंगे? 1000. ऐसा नहीं, डेटा पहले बात करो. 15,000 तो नंबर है. वी टॉक इन टर्म्स ऑफ रेशियो प्रोपोर्शंस. कितना लॉजिक है, रैंडम कुछ नहीं है. टिपिकल वट एवर द टेंटेटिव वैकेंसीज दैट पर्टिकुलर ईयर, उसका 12 से 15 टाइम लोग पास करते हैं. 12 to 15 times. That is the discretion of the chairman of the UPSC that particular year, because vacancies for that year are tentative. Ministries have not given the exact. UPSC has advertised that 1000 vacancies are there, 1040 are there. If there are 1040, number of people qualifying for the prelims must be 12,000 to 15,000. 12 to 15,000 के बीच का होगा. That decision is taken by them. It is 12 to 15% in the pre, and in the mains it is typically 1/5 of this. 1/5. अगर 15,000 है तो 2,500 से 3,000 के बीच में 2.5 to 3,000 people will qualify, and finally vacancies were what? 1,040. So 2.2. Final selection is like, even if you get a call for interview, then also there is a chance of 1 person out of 2.2 will be successful. After 2.2, 22 persons में से 10 पास होगा. समझ में आ गया? That is the data, that is the statistics which you must know. Correct? So paper 1, 2 sections, such a simple subject. Section A, how many questions in one section? How many questions in one section? How many questions in paper? 8 questions. Into 50 marks each. 400 marks. Correct? So one section means 4 questions. Both the papers are in the same way. Paper 1 is also same way, paper 2 is also same way. Good. Such a nice, well-defined. Third point I am telling you. First point I said about the physics. What is the first point? Language neutral. Second I said objective. Third I am saying very well-defined syllabus. कोई अभी रोज आज भी आया था, रोज मेरे से पूछने आता है मैथ्स में और फिजिक्स में क्या लूँ. मैं तो कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ. मैंने कहा मैथ्स आई टीच बोथ द सब्जेक्ट्स. आई नो द डिटेल्स अबाउट बोथ द ऑप्शनल्स. आई हैव टेकन द एग्जाम विद बोथ द सब्जेक्ट्स. मैथ्स हैज गॉट 23 बुक्स. 23 किताबें हैं. अभी गिन देता हूँ आपको मैं. मैथ्स के सिलेबस में कितनी किताबें हैं? 20. गिनूंगा अभी आपको, गिन दूंगा, क्योंकि फिजिक्स वाले सारे मैथ्स से फेमिलियर होते हैं. और फिजिक्स में कितनी किताबें हैं कुल मिला के? 8. कुल मिला के 8. 1/3 सिलेबस है फिजिक्स का. 1/3 एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेक्शन ए में सिर्फ 2 किताबें, मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स. सिर्फ 2 किताबें, मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स. हाउ मेनी क्वेश्चंस?
4 questions, correct? So from mechanics how many? 2. Averaging hai. 2 questions. 2 questions means how many marks? 100 marks. One question is 50 marks. So 2 questions means 100 marks. Weightage of mechanics is 100 marks. Weightage of optics is 100 marks. Any year question paper. You go and cross check question paper of any particular year. If you open paper 1, section A from mechanics, there must be 100 mark questions. And optics also there must be 100 mark questions. How they are distributed, I don't understand. There are 4 questions. Question 1, 2, 3, 4. Question 1 is compulsory. First question of every section is compulsory. Here also 5, 6, 7, 8. Here 2 books. Electricity magnetism, which I call in simple words EMT, electromagnetic theory, and next I call thermodynamics, thermal physics. Just 4 books. Here question 1 is compulsory, here question 5 is compulsory. So question 1, all the parts of question 1 are from both the sections, mechanics and optics. If you have not done optics, or you have not mastered optics, or if you have omitted certain topics from the optics and questions are asked from that particular topic, you are not able to answer the compulsory questions. You are bound to lose certain parts, correct? And try to understand how the paper is set. Every optional same technique, not only physics, every subject, maths also, chemistry also, engineering also, same way the paper is set. Question 1 is having 5 parts. How many parts? 5 parts. I mean there are 5 sub questions within question 1. And every question is of 10 marks each. अब ये बोर्ड के एग्जाम का 1 मार्कर समझ लो. बोर्ड में 2-3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना. 1 मार्कर आता है, 2 मार्कर आता है, 3 मार्कर आता है ना. और कभी कभी 4 और 5 मार्कर भी आता है. तो जो यहाँ पर 10 मार्कर है, बोर्ड का क्या है? 1 मार्कर है. 1 मार्कर, 10 मार्क क्वेश्चन. Good. 10 markers. Here 5 parts. Out of 5 parts, maybe what is the discretion of examiner? At least I have to give you 2 marks, 2 questions from mechanics, 2 questions from optics. Compulsorily. देना ही देना है. Only choice of examiner is 1 part. 5 है ना? Only choice of examiner is 1 part. If I like optics good, I am examiner, I am paper setter. I like optics. I am a teacher of optics. I may ask 3 parts from optics, 2 parts from mechanics. That is the only choice which examiner has. Or vice versa I can do. I can ask 3 parts from mechanics, 2 parts from optics. But there has to be 2 parts in this. Correct? Then there are 3 other questions. 1 question is from mechanics, 1 question is from optics. Full. Typically. And 1 question is once again mixed. 1 question is once again mixed. Typically, question 2 is mechanics. Question 3 is mechanics and optics mixed. I will explain the philosophy. And question 4 is, I can have the mixing. Other questions also I can mix. But many of the times in a standard paper, one question from single books. Like 1 full question may be from optics, 1 full question may be from the mechanics. Correct? And from 1 section, from any section, how many maximum questions you can attempt? 3. From any section, how many questions you can attempt? Maximum 3, minimum 2. One of the sections, out of 2 sections, you have to attempt 3 questions. And 1 section you have to attempt 2. 1 question is compulsory. Question 1 is compulsory. Karna hi karna hai. Now out of these 3 questions, 2, 3, 4, you have got, you can attempt 1. 1 is minimum you have to attempt. You can attempt 2 also. You can attempt 2 questions only when you have prepared both the parts. That is the logic. Same thing in the paper section B also. 5 is compulsory from EMT and thermodynamics. Same way 2 and 3. Question 6 is electricity magnetism. Question 7 is mixed. Question 8 is thermodynamics. So if you from any section, if you want to attempt 3 questions, then everything whatever is written into that section, you must have thoroughly prepared. You must know those questions, otherwise you are not going to
going to complete the entire paper. ठीक, message is clear? So every topic is important, every book is important. There is a very little choice. What is the choice? Like if you have mastered this section A, then you can do the paper 2 in such a way that you have to do only one compulsory and one question. So one section can be intensively done, and in one section you have to do whatever has been done into the books or has been done into the class, little less intensity. That is only can be done. Otherwise every topic, every book has to be done. Whatever I am doing into the class, every topic has to be well understood and has to be done. There is no way out. Starting point, when I am starting my course, all these things I am setting up, and I call this, I am setting up frame of reference. क्या सेट कर रहा हूँ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. पहला चैप्टर होता है ना फिजिक्स में, मेजरमेंट्स. सो आई एम सेटिंग माई स्केल, कि मालूम रहे कि कैसे पेपर सेट होता है, और यू कैन नॉट ओमिट एनी चैप्टर. वट एवर इज गिवन, इट हैज टू बी गिवन ड्यू वेटेज. ठीक है, तो पेपर सेटिंग. सो नाउ हाउ, क्वेश्चन 1 इज 5 पार्ट्स, 10 marks each. Then question 2, 3, 4, typically they are having 3 parts. Sometimes they can have 4 parts also. Few questions, 1 or 2 questions can have 4 parts. If there are 3 parts, typical distribution is 15, 15, 20. If there are 3 parts, how they are distributed? 15 marker, 15 marker, 20 marker. तो आप समझ लीजिए, 1 नंबर वाला था, 2 नंबर वाला है, 3 नंबर वाला है, 4 नंबर वाला है. 10 नंबर मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है. 10 नंबर को आप 2 नंबर वाला समझिए. 10 मार्कर मीन्स 2 मार्क क्वेश्चन, 15 मार्कर मीन्स 3 मार्क क्वेश्चन, एंड 20 मार्कर मीन्स 4, 5 मार्क. ओनली 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आर देयर. 10 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 20 मार्क्स. गुड. so, कितने क्वेश्चन हो गए? 3, 3, 3, 9. 3, 3, 9 and 9 and 5, 14. One section there are 14 questions. So in total paper, how many questions are there? 28 questions are there. Try to understand. Although there is a 5 questions, but they are subdivided into how many questions? 28 questions. And out of 28, how many you need to attempt? 19. कैसे? 5 parts here, 5 parts here, 10 parts. Then 3 other questions. There is no choice between question 5 whether you know or you do not know. Question 5 compulsory, question 6, question 1 compulsory. 5 and 5 parts, 10 parts. 10, all 10 markers. And they are printed in the question booklet. And whatever the space is to be given, you have to answer them in that space. Typically 10 marker question has to be answered within 1 page or 1.5 page maximum. Many of the times they give you 1 page, or if they are lenient, they might have given you 1.5 page. इससे 2 page कभी नहीं होता है. An answer has to take care of every information. So whatever they are asking, model answer can be written within 1 and 1.5 page. So if you are writing something more than that 1 page, that means you are wasting your time. You do not know what is required from examination point of view. You have not been able to understand the nature of the question. So clearly read the question. Whatever the question has been asked, if it has been asked for 10 marks, all informations about that question by a topper, where I am going to give the outstanding marks, will be provided within that space. So अगर कोई ये कहता है ना, जैसे ही मुझे कागज चाहिए लिखने के लिए, मैं समझता हूँ कि इसको फाइट कहाँ है इसकी, 100 नंबर नहीं आएगा इसको. जब भी कोई ऐसे हाथ उठा के, अभी टेस्ट सीरीज होगा ना 8 तारीख को, मैं ऐसे ही जांच लेता हूँ पहले ही. अब 8 तारीख को जो टेस्ट सीरीज होगी ना, यहाँ पर किसी ने कागज मांग दिया ऐसे मुझसे करके, मुझे आंसर दे दो, तो मैं क्या समझता हूं इसको? पहले तो मेरा स्टूडेंट नहीं है. पहली बात तो मुझे समझ में आ गई कि मेरा स्टूडेंट नहीं को, कि मेरा स्टूडेंट काम नहीं कर सकता, और मतलब उसको एग्जाम का नेचर नहीं मालूम है, और पेपर भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि 20 पेपर ऑफ क्वेश्चन अभी आपने एक भी बार आंसर नहीं किया इस लेवल के क्वेश्चन. चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे आप कहीं से पढ़ के आए हो, आपने 3 घंटे में जिस लेवल के क्वेश्चन यहां पर आते हैं, आपने अभी तक अपने लाइफ टाइम में, चाहे आप यूनिवर्सिटी के टॉपर क्यों ना हो, आपने 20 क्वेश्चंस आंसर नहीं किए हैं. यहां पर 20 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आंसर करने के लिए उल्टा लटक जाना है. जब तक पूरा सिलेबस ओढ़ोगे बिछाओगे नहीं ना, पूरा सिलेबस में कमांड नहीं होगा ना, आंख बंद करके जब तक डेरिवेशन करने की कैपेसिटी में नहीं होगे, एग्जाम में 3 घंटे में
पेपर आंसर नहीं होगा कल, इसलिए टॉपर के मुंह से सुनवा दिया था मैंने। समझ रहे हो क्या बार बार बोल रहा था कि मैं अपनी टेस्ट सीरीज में इसको 140 दिया करता था, एग्जाम में कितना आया 109, और क्या हुआ, क्वेश्चन छूट गया सर, कितने का 50 मार्क का क्वेश्चन पेपर छूट गया, टॉपर का छूट गया। समझ रहे हैं? इसलिए चीजें पहले दिन से समझ लो कि इस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है। मैं आईआईटी में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यूनिवर्सिटी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, और 98 से आज तक पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हैं? जितना मेरे जितना तजुर्बा लेके कोई खड़ा नहीं हुआ है इस देश में, देश की बेस्ट क्राउड को पढ़ाता हूं। एक ऑप्शनल है इस देश में जो सिर्फ मेरे नाम पर चलता है, मतलब जिसमें जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो मैं कह के चला जा रहा हूं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 25 साल में कोई भी साला ऐसा पास नहीं हुआ जो मेरी डांट खा के नहीं गया। ये छोटी मोटी बात नहीं, क्रॉस चेक कर सकते हो, कहीं से भी जाके खोज के लाओ, मुझे भी बड़ी खुशी होगी कोई ऐसा पास हो गया जो मेरी डांट खा के नहीं गया, जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, या जिसकी कॉपी मेरे पास नहीं है, या जिसने साइन यहां पर नहीं किया, या भीगी बिल्ली बन के क्लास में नहीं बैठा। कंपटीशन है सारा, एक एक सब्जेक्ट को 20 लोग पढ़ाते हैं, 20 साल से कितने लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे यहां तो कोई खड़ा भी नहीं हुआ पढ़ाने के लिए। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए स्टेमिना की जरूरत है, पढ़ने के लिए एनर्जी की जरूरत है। कोई गधा घोड़ा फिजिक्स ले नहीं सकता, ले ही नहीं सकता। फिजिक्स जो ले रहा है वो स्मार्ट है, तो पढ़ाने वाला तो और भी स्मार्ट होना चाहिए, और भी एनर्जी होनी चाहिए उसके पास, कि तभी फिजिक्स चल सकता है। फिजिक्स चलेगा ही नहीं तो गुड। इसलिए मैंने पहला चॉइस, जो पहला शब्द कहां से शुरू किया कि सब्जेक्ट कैसा है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल मीन सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। मुझे पसंद है, मैं फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा तो आनंद की दुनिया में विचरण करूंगा, आनंद लोक में चला जाऊंगा, मैं खूब एंजॉय करूंगा। मेरी तबीयत खराब होगी, लग रहा है मुझे फीवर है, उसके बाद भी जब मैं क्लास में आऊंगा तो क्या क्या एनर्जी है, मतलब क्लास में आते ही बदल जाता हूं, मतलब मैं कहां आनंद के लोक में चला गया। एनर्जी मतलब इतना आनंद है, मुझे आनंद की अनुभूति है, इसलिए फिजिक्स लिया था, इसलिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स पढ़ने में आनंद का अनुभव था, फिजिक्स पढ़ाने में आनंद का अनुभव है। चूंकि मुझे खुद पढ़ने और पढ़ाने में आनंद का अनुभव है, इसलिए जो साथ बैठता है उसको भी आनंद का ही अनुभव करते हैं। जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे लर्निंग प्रोसेस को, तब तक एग्जाम पास नहीं होगा। ऑप्शनल वो सब्जेक्ट है जो आपके प्रेम का सब्जेक्ट है, आपके लाइकिंग का सब्जेक्ट है। जब वो लाइकिंग का सब्जेक्ट होगा तो कठिन कुछ नहीं होगा उसमें। जब वो कोई चीज बोझ है जिसको आप पसंद नहीं करते और आप उसके साथ जा रहे हो तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब किसी चीज को आप पसंद करते हो तो उसकी निगेटिविटी भी टॉलरेट कर लेते हो, करते हो ना। तो ऐसा ही सब्जेक्ट है, ऐसा ही सब्जेक्ट है। अगर आप उसको लाइक करोगे तो सब्जेक्ट आपको लाइक करेगा, आपको भी रिवॉर्ड करेगा। आप जिसको घृणा करते हो वो आपको भी उतना ही डिसलाइक करता है। ये ध्यान रखना, जिंदगी के बारे में बड़ी बात बता रहा हूं। अगर आप किसी को डिसलाइक करते हो तो दूसरा भी आपको उतना ही डिसलाइक करता है। आप किसी को इंटेंशनली चाहते हो तो वो भी आपको उतना ही चाहता है। आप चाह के देख लो किसी को, अगर किसी को आप डिसलाइक कर रहे हो कि बुरा आदमी है, वो भी आपको बुरा ही समझ रहा है। यही सब्जेक्ट का हिसाब है। अगर आप सब्जेक्ट को लाइक कर रहे हो तो सब्जेक्ट भी आपको लाइक ही करेगा, आपको रिवॉर्ड करेगा। लाइफ लॉन्ग हमें रिवॉर्ड किया है। लाइफ लॉन्ग अच्छे लोगों को जो सब्जेक्ट को एंजॉय करते हैं, तो पूरी प्रोसेस क्या है, लर्निंग फिजिक्स मस्ट बी ए enjoying process because it is a subject of your choice। फोर्सफुली नहीं दिलाया है किसी ने, पिताजी ने नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा है, मैं किसी को नहीं बुलाता। मैं तो बार बार कहता हूं किसी को नहीं बुलाता। मैं तो कहता हूं आप आए हो और आपको सर्च करना, मैं तो भगाता हूं लोगों को। पहले दिन भी ऐसे पढ़ाऊंगा कि जिसको भागना है भाग जाए, जिसको मुझे जो मेरे लायक है वो मेरे पास ही आएगा। जो मेरे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में चल सकता है, मेरी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में हर गधा घोड़ा नहीं चल सकता, चल ही नहीं सकता। मुझे पूरे कोर्स को 4 महीने में खत्म कराना है। हाँ, 4 महीने में। 4 महीने में तुम्हारा यूनिवर्सिटी का जो टीचर वो मैकेनिक्स नहीं खत्म करा पाएगा, और मैं 4 महीने में क्या कर दूंगा, पूरा कोर्स
ओढ़ के बिछा के खत्म करा दूंगा सारा, और लगेगा सब कुछ हो गया। तुमको भी लगेगा, तुमको भी एक कोर्स करने के बाद लगेगा सब कुछ आ गया, पूरी समझदारी डेवलप हो गई सब्जेक्ट की, कैसा भी क्वेश्चन आए मैं सॉल्व कर लूंगा। बिकॉज अवर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू कॉन्फिडेंट दैट वट एवर काइंड ऑफ, इज ए कंपटीशन, इट इज नॉट ए यूनिवर्सिटी एग्जाम, इट इज ए कंपटीशन। यू हैव टू आउट स्मार्ट द पर्सन्स ऑफ सेम लेवल, यू हैव टू आउट स्मार्ट पीयर्स। आपके बैकग्राउंड वाले लोगों को आपको हटाना है, टॉप 15% में आना है, 85% को तो फेल ही हो जाना है ना। रिटर्न के हिसाब से 70% कह दूं, और वैसे 85 15% ही तो पास होंगे ना मैक्सिमम। तो आपको किसको डिस्प्लेस करना है? यदि फिजिक्स के सारे पास हो जाएंगे, फिजिक्स में भी 15-20% ही पास होंगे, सब नहीं पास होंगे। सो यू हैव टू डिस्प्लेस पर्सन्स ऑफ इक्वल लेवल, एंड फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट मेक्स अ डिफरेंस, एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम द इक्वल लेवल। सबका लेवल ठीक है, सबका, किसी को भगवान ने कम समझदारी नहीं दी है, खूब समझदारी दी है। ये एग्जाम कोई IIT का एग्जाम भी नहीं कि बहुत इनोवेटिव आंसर आना है। सिर्फ क्या डिफरेंस है, कौन कितना स्मार्ट वर्क करता है, चीज़ों को कितना पकड़ लेता है। उसने भी कल कहा था, मैं भी फिर से कह रहा हूँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो बताया जा रहा है उसको 4 दफ़े करना है, 4 times यू हैव टू डू वट एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वी विल बी एबल टू डिलीवर विद इन द गिवन टाइम। कौन सी तारीख है आज? 3 जून। ऐसे बैच शुरू होता है। बैच शुरू कैसे होता है लिख दिया, 3 जून 2025 स्टार्टिंग डेट। हाँ, अंतिम 5 महीने बाद जोड़ के बताओ। हाँ, 3 नवंबर, 3 नवंबर भी नहीं, ये बैच है, ये जो बैच पढ़ा रहे हैं ना, इस बैच का क्या नाम है? 3 जून, जून टू अक्टूबर बैच। 5 महीने हो गए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नेक्स्ट A to Z। ठीक है जी। नवंबर में इस बैच के एक भी व्यक्ति को फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँगा। आप मेरे पास आओ, क्वेश्चन पूछने आओ, बट इन नवंबर आई विल नॉट बी टीचिंग एनी पर्सन ऑफ दिस बैच फिजिक्स सब्जेक्ट क्लासरूम में एज एन स्टूडेंट ऑफ क्लास, नेवर। 31 अक्टूबर तक पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। हर बैच में हुआ है, 134 बैचों में हुआ है, 134 बैचेज में, ये 135 है, उसमें भी होगा। साल में 5 दफ़े पूरा कोर्स पढ़ाता हूँ। कितनी बार? कम से कम 5 बार, 5 times in a year, 27 years नॉन स्टॉप। जितना किसी यूनिवर्सिटी के या किसी कॉलेज के 7, 8, 10 टीचर मिलके नहीं पढ़ाते, उतना कोर्स मैं साल में कितनी बार पढ़ाता हूं? 5 बार। 5 बार क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा साल में, 5 बार मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, 5 बार न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाऊंगा, 5 बार सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ाऊंगा, 5 बार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा साल में। समझ रहे हैं किस लेवल के साथ कहां पर खड़े हुए हो? इसलिए कुछ भी बात करने से पहले, बर्र के छत्ते में पत्थर फेंकने से पहले सोच लेना कहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पर जब से पढ़ा रहा हूँ तब से पिन ड्रॉप साइलेंस है क्लास में, जब से पढ़ा रहा हूँ, आज नहीं। ठीक है। और फायदा आप जानते हैं, जब IIT का GSA बना था ना, तभी भी यही कमांड था कि वोट डलता था मेरे नाम पर वोट डलता था। किसी दूसरे के वोट पर नहीं जीता आज तक, अपने वोट पर जीतता था, अपने वोट पर। और कमांड था, कोई चू चपड़ कर जाए कोई, और हर 10 मिनट बाद कहूंगा जो पूछना पूछ लो। ये नहीं है कि आई विल स्टॉप एनी डिस्कशन, जो पूछना चाहो पूछ लो, लेकिन उसका भी एक स्टाइल है। सो माई क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ 4 वेल डिफाइंड थिंग्स। याद रखना, बार बार पूछता हूं कि मेरी क्लास क्या है, क्योंकि जो भी मेरी क्लास करके गया है, चारों डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मेरी क्लास क्या है, मेरी नजर में क्या है। दुनिया के किसी टीचर की क्लास करके आए हो, लेकिन मेरी क्लास क्या है वो ध्यान रखना। पहला क्या है? इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ रेजोनेंस। माई क्लास इज एन एक्सपीरियंस ऑफ रेजोनेंस। व्हाट रेजोनेंस? व्हाट इज द रेजोनेंस? व्हाई देयर इज अ सिस्टम, there is a system
एंड देयर इज अ सोर्स। रेजोनेंस में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक सिस्टम होता है और एक सोर्स होता है। सोर्स का क्या पर्पज है, टू डिलीवर एनर्जी, डिलीवर पावर, एंड सिस्टम को एक्वायर करना होता है, करेक्ट। एंड दे आर हैविंग सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सोर्स में हैव सम फ्रीक्वेंसी, सिस्टम में हैव सम फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। इफ देयर इज अ मिसमैच ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू, देन द सोर्स कैन नॉट डिलीवर इट्स ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। अगर मुझे पावर डिलीवर करनी है, मुझे एनर्जी डिलीवर करना है, मुझे कंटेंट डिलीवर करना है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी में क्या है, मिसमैच है, तो जो भी मैं डिलीवर करना चाहता हूं वो डिलीवर नहीं होगा। परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी ऑप्टिमाइज्ड, इट विल नॉट बी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। फॉर सिस्टम्स परफॉर्मेंस टू बी ऑप्टिमाइज्ड, सिस्टम्स परफॉर्मेंस, source has to deliver its best, and when both the frequencies match, synchronized movement, frequency of source and system matches, then performance of the system becomes optimum. Somewhere it can be maxima, somewhere it could be minima also. रिजेक्ट भी कर सकता हूं, मुझे अगर कोई चीज पसंद नहीं आई तो थ्रो आउट भी कर सकता हूं। पैरेलल एलसीआर सर्किट है, रिजेक्ट कर दिया मैंने। Not necessary that resonance must be always the condition of maximum. Power delivered by the system has to be always maximum. When the source will deliver the maximum power, when both of them are synchronized, correct? So समझिए, मैं टीचर हूं, मतलब मैं सोर्स हूं, और आप क्या है, सिस्टम है। आपकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, कोई कहीं से पढ़कर आया, कोई कहीं से पढ़कर आया, किसी का कोई क्वालिफिकेशन है, किसी का कोई क्वालिफिकेशन है। मेरी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, किसके हिसाब से फिक्स्ड है, यूपीएससी एग्जाम के हिसाब से फिक्स्ड है। मेरी फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हो सकती है, डिफरेंट टीचरों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, करेक्ट। बट मेरी फ्रीक्वेंसी कहां सेट है, व्हाट एवर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 और 2026 और 2027, वट एवर दे आर रिक्वायर्ड, वट एवर द रिक्वायरमेंट, आई हैव फिक्स्ड माई क्लॉक अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सीएसई। फ्रॉम माई वास्ट विजडम, फ्रॉम माई वास्ट एक्सपीरियंस, I have set my clock according to requirement of civil services examination. You do not know, you are operating at different frequencies. Once our frequencies match, system gets synchronized, then your performance in the exam must be optimum. That is my objective, and that we call is what, state of resonance. We are not in the state of resonance, but I am trying to create resonance. We have to match the frequency. Once you will match the frequency according to my speed, this course is to be done in 4.5 months. 5 महीने किसकी स्पीड से, मेरी स्पीड से है, किसी दूसरे टीचर की स्पीड से नहीं है, आपकी स्पीड से भी नहीं है, मेरी स्पीड से है। I will deliver the whole content within 4.5 to 5 months. I have been doing it. So resonance first, second, याद है, ध्यान आ गया, क्योंकि बार बार पूछूंगा मैं कभी कि मेरी क्लास क्या है, मेरी क्लास किसका एक्सपीरियंस है, रेजोनेंस का। फिजिक्स की लैंग्वेज में कहा कि मैं सोर्स हूं, आप क्या है, सिस्टम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, सिंक्रोनाइज मूवमेंट होगा, देयर विल नॉट बी एनी डेविएशन, एंड आई विल डिलीवर द मैक्सिमम, सोर्स विल बी एबल टू डिलीवर द मैक्सिमम पावर, एज ए कॉन्सिक्वेंस परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विल बी ऑप्टिमाइज्ड। सो इट इज एक्सपीरियंस ऑफ रेजोनेंस, डेफिनेशन बाय फिजिक्स। सेकंड, when it is resonance, consequence of resonance is that source must deliver maximum power. अगर तुम मुझे बार बार पोक नहीं करोगे तो whatever I want to deliver, I will deliver. Source will deliver its uninterrupted maximum power. So what will happen? You will gain maximum. It is a energy transfer mechanism. Second definition is what? What is my class? Energy transfer mechanism. आपकी एनर्जी कम हो सकती है, लेकिन मेरी एनर्जी तो बहुत है। आप मेरी क्लास में सो नहीं सकते, चाहे लास्ट रो में बैठा चाहे पहली रो में बैठा, हिम्मत नहीं है कि तुम सो के चले जाओ, यहां पर हिम्मत नहीं है कि तुम चाप फेंक दो। क्लास में बहुत कुछ किया होगा तुम लोगों ने, बहुत नाटक खेला होगा, लेकिन मेरी क्लास में कुछ नहीं होता। मेरी क्लास में जहां मैं ले जाना चाहूंगा ये क्लास वहीं जाएगी। गुड, तो क्या कर रहा हूं, एनर्जी ट्रांसफर, आई एम एट द हायर एनर्जी। लाइव, बहुत बार कहता हूं, लाइव वायर मोर देन 220 वोल्ट्स की है, कहूंगा छू लो तो छूओगे क्या?
फिजिक्स वाले सारे जानते हैं ना कितना वोल्ट का करंट लगा हुआ है, तो उंगली डाल दो। गुड। तो मैं तो भैया 11 किलोवाट की लाइन हूं, 11 केवी लाइन हूं, बर्निंग वायर, लाइव वायर हूं, लाइव वायर। छुओगे तो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाओगे, समझ रहे हो? लाइव वायर हूं। सो ज्यादा एनर्जी सोर्स से क्या होता है? हमेशा एनर्जी ट्रांसफर होती है ऑल द टाइम। व्हेनेवर आई एम क्लास, आपको लगेगा हाई एनर्जी है, आपकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी, हर एक आदमी की एनर्जी बढ़ेगी, रोज बढ़ेगी। मेरी क्लास में बैठोगे रोज मोटिवेशन, क्योंकि क्या फिजिक्स कितनी पढ़ानी, कल भी बताया था फिजिक्स कितनी देर पढ़ानी, 90 मिनट, ज्यादा फिजिक्स 90, 20-25 मिनट क्या करना, सिर्फ मोटिवेशन ही करना। मोटिवेशन का उद्देश्य क्या, क्या पर्पज उसका? एनर्जी बढ़ाना। हर एक आदमी की, कोई आदमी डाउन ना फील करे, रोज कुछ ना कुछ ऐसी बात सुना देना कि आप उससे उत्साहित हो जाओ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूं। दैट इज व्हाई इट इज एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म। सेकंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन ऑफ माय क्लास, वेरी सिंपल डेफिनेशन, वो किसी ह्यूमैनिटीज की क्लास में जीएस पढ़ाने में भी बोल देता हूं, क्योंकि जीएस वाला भी समझ जाता है, दो चीजें समझ नहीं पाता। माई क्लास इज एन एक्सपीरियंस ऑफ ए फ्लाइट। हवाई जहाज की यात्रा है। किसकी? हवाई जहाज, वो भी डोमेस्टिक वाली नहीं, डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट का जहाज है। कितनी स्पीड पर दौड़ रहा है? 1250 किलोमीटर पर घंटा, 1250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पढ़ा रहा हूं। अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी तो 300 रनवे में जहाज दौड़ रहा है। रनवे में जब दौड़ेगा ना, ये बात भी समझ लेना कि फर्स्ट अगर ह्यूमैनिटीज की क्लास में पढ़ा रहा होता या जीएस पढ़ा रहा होता तो कहता, रिवर्स कर देता पहली डेफिनेशन की। माय क्लास इज एन एक्सपीरियंस ऑफ ए फ्लाइट, आई एम पायलटिंग द क्लास। जहाज उड़ा रहा हूं, जहाज, और जहाज में बैठ गए अगर आके, कैसे भी आके, तो अब कान ना फटे तुम्हारा, प्रेशर ना लगे जहाज में। जहाज में बैठ गए हो, 2 घंटे के अंदर डिलीवर हो जाएगा। दिल्ली से अगर फ्लाइट चालू हो रही है ना, तो 2 घंटे में बेंगलोर और बॉम्बे पहुंच ही जाओगे। और किसी ट्रांसपोर्ट के मोड से तुम बॉम्बे और दिल्ली, बेंगलोर 2 घंटे में नहीं पहुंच सकते। और हम इंटरनेशनल फ्लाइट का जहाज है, 1250 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, 2 घंटे में कहा बॉम्बे लग जाओगे। बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे ले जाएंगे, बेंगलोर जाना है तो बेंगलोर ले जाएंगे। गुड। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट में क्या क्या होता है? कितनी हाइट, कितना एल्टीट्यूड? 36,000 फीट ऊंचाई, समझ रहे हैं? डोमेस्टिक फ्लाइट कितने में होती है? 25-26 हजार में उठती है, और इंटरनेशनल फ्लाइट 36,000 फीट से ऊपर उठती है, 36,000 to 40,000 फीट। तो क्लास, और ये कोई कार का और बाकी का एक्सपीरियंस नहीं है, फ्लाइट का एक्सपीरियंस है। और अभी तक जिनसे पढ़कर आए हो सब क्या थे मेरी नजर में? ज्यादा से ज्यादा मेट्रो ट्रेन थे, समझ रहे हो जी? जिनसे भी पढ़कर आए हो ज्यादा से ज्यादा क्या थे हो? बहुत तो बैलगाड़ी थे, बहुत सारे कार थे, खचारा कार जैसे भारत के दूसरे टाउन्स में होती है। और यहां पर क्या, किस पे बैठ गए हो आके? इंटरनेशनल फ्लाइट में, जो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 40,000 फीट पे। कितनी स्पीड से? 1250 किलोमीटर पर आवर पे। कितना टेम्परेचर है? -40 डिग्री सेल्सियस है। इतने टेम्परेचर में उड़ रही है, ये सारे पैरामीटर के साथ फ्लाइट उड़ रही है। गुड। लेकिन फ्लाइट में बेटा मूंगफली खा के थूकने की परमिशन नहीं है। ट्रेन में तो जाके थूक लो, ट्रेन में चाय भी पी लो, हाँ, जो दिया जाएगा वही खाओगे। अगर पैसा नहीं दिया है तो खाने भी कुछ नहीं मिलेगा, पीने भी कुछ नहीं मिलेगा तुमको, है ना? फ्लाइट में अगर तुमने पैसा नहीं बुक किया है, ना तो खाने कुछ मिलेगा ना पीने कुछ मिलेगा। इंटरनेशनल फ्लाइट में मिल भी जाता है, डोमेस्टिक फ्लाइट में 2 घंटे वाली में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मूंगफली खा के थूकने की और घर से लंच ला के खाने की परमिशन नहीं है। तो क्या हुआ, क्या कहा मैंने? ये बात कह के क्या कह दी? मेरी क्लास में जहां मैं ले जाना चाहता हूं, क्लास वहीं चलती है। जिस डायरेक्शन में ले जाऊंगा, पायलट कर रहा हूं क्लास को, जैसे मोड़ना चाहूंगा वैसे मुड़ेगी क्लास। यहां पर ना तो कोई पान खा के थूकता है, ना कोई मूंगफली खा के थूकता है, कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ एकदम बैठा रहता है। जहाज में जिस सीट पे बैठा दिए गए हो उसी में बैठे रहोगे 2 घंटे तक। और 2 घंटे के बाद बेंगलोर पहुंच गए, बड़ा अच्छा लगेगा कि पहुंच गए जी, पूरा टॉपिक खत्म हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, दिल्ली क्या है, बेंगलोर क्या है, ये और समझ लो। ये फ्लाइट में दिल्ली क्या है और बेंगलोर क्या है। 2 घंटे के बाद बेंगलोर ले जाते हैं। अब कहोगे, कोई कह देगा कि 2 घंटे नहीं, 10 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है बेंगलोर जाने का। तो मैंने कहा भैया कौन सी जहाज से जाते हो? डोमेस्टिक फ्लाइट से जाते हो, इंटरनेशनल से नहीं जाते हो। मेरा बोइंग है
बोइंग लेके जा रहा हूँ 770 जो 1250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, इसलिए 2 घंटे के अंदर ही डिलीवर हो जाएगा। विद इन 2 आवर्स आई हैव बीन टेकिंग यू टू द बेंगलोर ऑल द टाइम। व्हाट इज दिल्ली? दिल्ली इज 11th क्लास नॉलेज, 11th 12th क्लास बस। दिल्ली क्या है? ये जो फ्लाइट उड़ रही है ना दिल्ली टू बेंगलोर की जो फ्लाइट है ये कितने में है? ये 1250 kmph पे चलेगी और ये 40,000 फीट पे उड़ेगी। और दिल्ली क्या है? 11th 12th। ये दोनों क्यों कही? 11th क्लास में क्या पढ़ते हो? मैकेनिक्स। प्रिसाइज बात करो यार, फिजिक्स के स्टूडेंट हो। मैकेनिक्स पढ़ते हो, गुड। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, वेव्स भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, यही पढ़ते हो ना 11th में। 11th में सिर्फ 2 ही चीजें पढ़ते हो, मैकेनिक्स पढ़ते हो, वेव्स पढ़ते हो और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, करेक्ट। 12th में क्या पढ़ते हो? इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो, करेक्ट। 12th में पढ़ते हो, इसलिए 11th 12th बार बार कह रहा हूं। पहला 11th जो पेपर 1 में 11th पढ़ोगे, पेपर 1 का जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है वो 12th में है, अदरवाइज 11th है। 11th 12th दैट्स इट। और ये बेंगलोर क्या है? बेंगलोर क्या है? यूपीएससी का सिलेबस बहुत छोटी चीज़ है, वो तो सब उड़ जाएगा यहाँ पर, सब ऊपर जो जा रहा है भी जाएगा। नोमेनक्लेचर समझ लो पहले दिन का, पहले नोमेनक्लेचर सबको समझ लो। जो डेस्टिनेशन है जो बेंगलोर है वो है ट्यूटोरियल सीट्स। क्या है? ट्यूटोरियल सीट्स, टीएस है, यही लिखूंगा। ट्यूटोरियल सीट्स क्या है ये? इनकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, एवरी वर्ड हैज गॉट प्रॉपर मीनिंग। व्हाट आर ट्यूटोरियल सीट्स? नथिंग। ट्यूटोरियल सीट्स आर द कलेक्शन ऑफ प्रीवियस 10 to 15 ईयर क्वेश्चंस। 2010 से लेकर 2014 तक का या 2012 से लेकर 2024 तक का क्वेश्चन पेपर है, टॉपिक वाइज टॉपिक। ये मेरा प्रॉपर नाउन है। मैं सिर्फ ट्यूटोरियल सीट बोलता हूं। यूपीएससी के जितने भी फिजिक्स के टॉपर हैं सिर्फ ट्यूटोरियल सीट के बारे में बात करेंगे। मैं पीवाईक्यू वगैरह शब्द यूज नहीं करता, मेरे यहां गलती से भी मत करना, क्योंकि मेरा प्रॉपर शब्द क्या है? टीएस, ट्यूटोरियल सीट्स। फिजिक्स का स्टूडेंट सिर्फ ट्यूटोरियल सीट सॉल्व करता है। पीवाईक्यू वगैरह कई इधर उधर मूर्ख लोगों के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। पीवाईक्यू से ज्यादा बड़ी चीज है मेरी क्या? टीएस। टीएस टॉपिक वाइज कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज, correct। it is nothing. What is the definition of tutorial? Tutorial sheets is nothing but the topic wise collection of question paper. Good. I started teaching in 98। तो अगर मैं 90 से लेके क्वेश्चन लिख देता तो क्या हो जाता? कितना बल्कि हो जाता? 92। मैंने क्या किया? 2 पार्ट में बांट दिया। 4 years ago every batch something or other is new, not everything is same। every batch is new batch for me। ये और बड़ी बात बता दूं, every batch is new given the content is static but still every batch is new। I'm explaining this point। What I did 2 years ago, I divided, earlier my tutorial sheet have got, like if you will see from here and there, many are the tutorial sheet। बहुत टॉपर्स के पास देखोगे ट्यूटोरियल सीट्स हैं, वो 90 से क्वेश्चंस हैं। अब 90 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन डालूंगा और क्वेश्चंस आर रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, unnecessarily it becomes very bulky। every chapter has got 60 70 questions, unimportant, not required। I broke them into 2 parts, assignment and TS। TS means last previous 10 years and everything else I have incorporated into the assignment। So same tutorial sheet, TS1 then assignment 1। assignment 1 will contain the question from 1990 to 2012 2011, then from 12 onwards maybe the question paper, everything is incorporated in tutorial sheets, correct। So starting point is 11th 12th class knowledge and destination is ट्यूटोरियल सीट, करेक्ट। मालूम पड़ गया। अब बीच बीच में क्या आएगा? 11वीं 12वीं के बाद कहाँ जाओगे? 11वीं 12वीं के बाद बीएससी करोगे, बीएससी के बाद एमएससी करोगे, एमएससी के बाद पीएचडी करोगे, सब कर लोगे मेरी क्लास में। मेरी क्लास में सब कुछ कर लोगे। बीएससी तो करा ही दूंगा, बीएससी भी कर लोगे, एमएससी भी कर लोगे, जो नहीं किए हुए हैं। मतलब कौन नहीं किया हुआ है? इस क्लास में कम से कम आधे होंगे जिसने बीएससी नहीं करी है, एमएससी नहीं करी है ना। जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं उनकी फिजिक्स की नॉलेज कितनी है? सिर्फ 12th क्लास।
गलती से भी समझने की कोशिश मत करना कि तुमको फिजिक्स आगे की आती है। नॉलेज कितनी सिर्फ तुम्हारी 12th क्लास है। और प्रूफ दे रहा हूं, पेपर 2 में कुछ नहीं जानते हो तुम, और पेपर 2 में कल भी दिखाया कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए। पेपर 2 में जो पढ़ाता हूं वही तुम जानते हो। अगर तुम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो तो पेपर 2 में तुम कुछ नहीं जानते हो। गुड। और पेपर 2 में मेरे स्टूडेंट हमेशा आउटस्टैंडिंग करते हैं। और कितने दिन में पढ़ाता हूं? 2 महीने में। अभी बताऊंगा कितने महीने में पूरा पेपर। 5 महीने में पूरा कोर्स। पेपर 1 3 मंथ्स में, पेपर 2 2 मंथ्स में। सिंपल। आई विल जस्ट एक्सप्लेन। पूरा बीएससी, आधा एमएससी, मतलब 4 ईयर का कोर्स है। 3 ईयर का बीएससी फुल। बीएससी में जो पढ़कर आए हो सब पढ़ा दूंगा तुमको मैं। बीएससी में आप जितना पढ़कर आए हो सब कुछ रिवाइज करा दूंगा मैं आपको इतने इस पीरियड में। 1 साल का एमएससी और डेप्थ और ज्यादा। 1 साल का कम से कम एमएससी, क्योंकि 4 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स नहीं है। दिस वॉट एवर द सिलेबस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज, दिस सिलेबस इज इक्विवेलेंट ऑफ 4 ईयर डिग्री कोर्स. So if you have done BTech in engineering physics, almost you have done everything. Only persons who have done BTech in engineering physics or MSc from most of the universities, they must be familiar with 80 to 90% of the syllabus. 10% उन्होंने भी नहीं पढ़ा है. अगर आपने MSc करी है या BTech किया है इंजीनियरिंग फिजिक्स में, किसी भी IIT से या किसी भी जगह से इंजीनियरिंग फिजिक्स में 4 साल की डिग्री है तुम्हारे पास, तो मेरी नजर में तुमने 80 से 90% सिलेबस पढ़ा हुआ है. बाकी किसी ने 80 to 90% सिलेबस नहीं पढ़ा. चाहे आप BSc करके आए हो, कहीं से भी BSc करके आए हो, बेस्ट एट यू से करके आए हो, 70% किया है, 70-75%. Still 25% syllabus we have not gone through. I will demonstrate all the time. I will demonstrate. BSc कराएंगे, MSc कराएंगे, और PhD कैसे कराएंगे? PhD नहीं कराएंगे. Whatever is the syllabus, I call physics to be social physics. मैं फिजिक्स को क्या बोलते हैं? एक अगस्त काम्ट नाम के सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं. सोशियोलॉजी जब पढ़ोगे ना, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग के लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं हमारे यहाँ. तो जब सोशियोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें एक अगस्त काम्ट नाम का सोशियोलॉजिस्ट है, थिंकर है. वो कहता है सोशियोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ सोशल फिजिक्स. और मैं भी यही कहता हूँ, आई ऑल्सो सेम. फिजिक्स पढ़ के आईएएस बनने से क्या कनेक्शन है? कुछ है क्या? कोई कनेक्शन नहीं है. फिजिक्स का आईएएस बनने से क्या कनेक्शन? आईएएस बनने के बाद फिजिक्स का क्या यूज है? कोई यूज नहीं है. और समझो तो रोज यूज है. एक थप्पड़ कोई मारेगा ना तो दूसरा थप्पड़ दूसरे हाथ से मारोगे, एक्शन की रिएक्शन होगी. अगर कोई ऑर्डर निकालोगे ना तो उसके दूसरे दिन रिएक्शन देख लोगे जिले में क्या ऑर्डर हो गया. अगर तुमने किसी भी चीज का ऑर्डर निकाल दिया, आईएएस बन गए, और ऑर्डर निकाल दिया किसी चीज का कि भाई साहब जब डिमोलिशन कर दो, डिमोलिशन का ऑर्डर निकाल दिया, अगले दिन क्या होगा? रिएक्शन होगी कि नहीं उसकी? एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जितना बड़ा तुम्हारा ऑर्डर होगा उतना ही अपोजिट उसका रिएक्शन होगा. एवरी प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स रेजोनेट्स वेरी वेल इन लाइफ. सिर्फ आपको नजर घुमानी है कि देखोगे फिजिक्स का प्रिंसिपल डे टू डे लाइफ में कैसे यूज होता है. करेक्ट. यूजफुल वर्क कैसे होता है? यूजफुल वर्क, फोर्स इन एनी डायरेक्शन. फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका एक्शन हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा, विल देयर बी एनी वर्क? वर्क होने के लिए क्या एसेंशियल है? सेम डायरेक्शन. इफ फोर्स एंड द रिएक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, इट इज इन द सेम डायरेक्शन, देन ओनली यूजफुल वर्क इज परफॉर्म्ड. अदरवाइज वर्क इज नॉट यूजफुल. नो वर्क इज परफॉर्म्ड. पावर नहीं जनरेट हो रही. पावर कब जनरेट होती है? व्हेन द वर्क इज डन in the force is applied into the proper direction. Direction is very important. Every day अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं पढ़ाई करोगे तो कभी पास होगे क्या? उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ो, रैंडम खूब पढ़ो, एग्जाम पास हो जाओगे. एग्जाम पास होने के लिए क्या चाहिए? फोकस्ड अटेंशन. फोकस्ड on the syllabus. Whatever is prescribed in the syllabus. First advice will be whatever is prescribed to the syllabus. Mug up the syllabus. Read the syllabus. You have not to become the scholar of physics. You have to score. Your purpose is, objective is to score highest marks in the subject, not to become a scholar. ये aim नहीं है यहाँ पर. So ये जो PhD का मतलब philosophy. Take the physics to the level of philosophy, where everything, every formula, every model should have resonance in the real life situations. How to connect the things with the
रियल लाइफ सिचुएशंस, वो भी बताएंगे आपको। इसलिए सिर्फ वो जो 90 मिनट्स ही फिजिक्स है, जो 20 मिनट्स 25 मिनट्स है ना, उस टॉपिक से कनेक्टेड उठाएंगे। जो डिस्कशन करेंगे ना लाइफ में, लाइफ सिचुएशंस में लगाएंगे फिजिक्स को, लाइफ सिचुएशंस में, दैट आई विल कॉल अप्लाइंग फिजिक्स टू द सोसाइटी, सोशल एप्लीकेशंस। That is the level of philosophy. We will take the physics to the level of philosophy. तो BSc, MSc सब क्रॉस हो जाएगा, everything good। क्या क्या डेफिनेशन बताई, कितनी डेफिनेशन बताई अभी तक? 3 बता दी। तीन कौन कौन सी बताई आपको मैंने? रेजोनेंस बताया, एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म बताया, फ्लाइट पढ़ा बता दिया, फ्लाइट बता दिया, ठीक है जी। Every class is self-introspection. Every class will aid on to your self-introspection. खुद को पहचानना सिखाता है मेरा कोर्स। मेरी क्लास में क्या फोकस है कि आप अपनी कमियों को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो, अपनी वीकनेसेस को पहचानो। आपको अल्टीमेटली एग्जाम पास करना है। सो आई कॉल द फोर्थ थिंग, इट इज द एग्जाम, और आई एम टीचिंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपनी दूसरे की कमियां मालूम करना आसान है, दूसरा क्या गलती कर रहा है, खुद क्या गलती कर रहे हो। आप खुद का आंसर पहले स्वयं देखो कि तुमने क्या लिखा है, क्या लिखना चाहिए था। पहले खुद अगर 2 बार पढ़ोगे आंसर को तो मालूम पड़ेगा कि इसमें ये चीज मैंने छोड़ दी। ये आदत तुमको डेवलप करनी है। Habit of self-introspection, trying to and you better yourself. No good person has got competition with anybody else. Best persons have got competitions with themselves. खुद से आपका competition है, खुद की आपको yardstick उठानी है। So it is self-introspection. I will teach you self-introspection, and I will keep on repeating. This is the exam of self-introspection. Failing prelims is not bad. Failing mains is not bad, but not learning from flunking prelims is bad. You are not able to draw the proper. The people who flunk 2 times, 3 times are those people who are not able to draw the proper lessons why they have flunked the first time. If you have known those gaps, if you are able to bridge up those gaps, you are able to succeed in next attempt. Good. तो पेपर 1 तो मालूम ही पड़ गया। अब ये बताओ, पेपर 1 मैकेनिक्स and optics. 2 questions from mechanics, 2 questions from optics. How many maximum questions in 2? टोटल कितने थे? सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चन कितने थे? 14 थे। तो एक में कितने? 7 ना। बहुत लॉजिकल है यार। अगर 14 क्वेश्चन टोटल थे, क्वेश्चन 1 was having 5 parts, rest other questions were having 3 parts each, then how many questions? 9 plus 5 14। एक किताब से कितने? 7 parts, 7 bits, 7 questions, whatever you want to call। अब ये समझ जाना, 7 parts are asked, 7 parts divided into how many marks? 100 marks। Good। 7 में समझ लीजिए कि 3 are 10 markers, 3 are 10 markers, 30 marks for 10 markers, 4 are 15 markers। ये लो जी, पहले 7 का डिस्ट्रीब्यूशन, 10 into 3 30, 15 into 4 60। तो अब क्या होगा, इसमें 15 into 4 नहीं होगा, तो 15 into 2 नहीं होगा, 3 होगा, 45 हो गया। अब क्या करेंगे, कोई 5 मार्क का बनाना पड़ेगा या कोई 20 मार्क का बनाना पड़ेगा। 3 और 3 6 हो गए, और एक क्वेश्चन जो बचा ये 20 मार्क्स इंटू 1 क्या हुआ 20। कितने मार्क्स का बना? 95 हुआ ना। तो क्या कर सकता था, एक इधर कम कर दूँ, इधर बढ़ा दूँ, 2 कर दूँ। 7 क्वेश्चन का हिसाब बता दिया आपको। कम से कम 2 या 3 10 मार्कर्स होंगे, कम से कम 3 15 मार्कर होंगे, 4 भी हो सकते हैं, एक 20 मार्कर होगा। देख, दीज आर टिपिकली 7 questions, correct? Every book, now I need not repeat this thing, every book, I will call this one book, mechanics is one book, optics is one book,
weight in the exam is 100 marks. How many questions? 7 questions. Correct. So well defined. किसी भी साल का पेपर दे के आओ जाके, 7 होगा, 6 भी हो सकता है, 8 हो सकता है, बस 7 ही होगा most often. Most often these 7 questions. Just I am opening mechanics, nothing else. Mechanics. Opening mechanics. Well defined syllabus. Physics is a language neutral subject. Physics is an objective subject. Physics is a scoring subject. Syllabus is well defined, very well defined. Very well defined. When I say very well defined, I elaborate by calling that horizontal and vertical spread is very well defined. उसको मैंने adjective लगा दिया. Very well defined is open ended. Physics का word नहीं लग रहा मुझे. Very well defined. Very well defined को कैसे define किया? Horizontal and vertical spread of syllabus is very well defined. Fourth point बताया मैंने. फिर से समझना क्या बात बताया मैंने. Horizontal and vertical spread of syllabus. Elaborate कर दिया मैंने. Is very well defined. That is another beauty of the subject. Is very well defined. Horizontal and vertical. Horizontal मतलब कितने topics हैं. Vertical means how deeper you have to go. How deeper you have to go, how we will come to know? By tutorial sheets. Past questions. What kind of problems have been asked? What kind of theoretical questions has been asked? That will decide what is the vertical spread of the course. Correct? Why the horizontal spread? क्या है? What is given into the syllabus? Rarely they ask anything which is outside the syllabus. Rarely. If there is one question outside the syllabus, I do not say this is exception. 20 question में अगर एक question outside the syllabus आ गया तो we call it exception. 28 questions में से 28 है ना total. Out of 28 questions, if one part is outside the syllabus which has not been prescribed, or you are not able to find out that from which topic it has come, then I say it is exception. Good. Otherwise, most of the time, 100% of the syllabus comes from only those topics which has been prescribed into the syllabus. Correct? Nothing comes. You are not able to understand. If you are saying that one part or two parts have come outside the syllabus, you are not able to understand the syllabus. So, horizontal spread is defined by the syllabus and the past questions. Past questions mean tutorial sheet. Whatever kind of question they have asked, tutorial sheets defines those questions. They explain you the depth of the questions and horizontal spread. What has to be studied within a particular topic. Whatever the topic they have been mentioned, what is the how much you have to study in that topic, that is decided from the past questions. ठीक है जी? So horizontal and vertical spread of the syllabus is very well defined. समझिए अब. देखिए सिर्फ मैकेनिक्स में क्या है. This is a sandwich course. This is a sandwich, very difficult course. Very difficult course. Mechanics, most of the persons who have done BSc or engineering, they study mechanics in first semester, right? That mechanics is called general mechanics. Whatever people study in first semester of their graduation degree, that mechanics is called general mechanics. BSc people also study mechanics in 6th semester, 5th semester. पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ते हैं? MSc में पढ़ते हैं? अब चेंज हो गया. MSc में पढ़ते हैं ना? क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं कि नहीं? 4 साल के डिग्री में तो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना? करेक्ट. दिस कोर्स इज अ सैंडविच्ड. This course is not a general mechanics course. This course is sandwiched between a course of one semester, first semester course of mechanics and 6th semester course of classical mechanics. Whether you study in 3rd year or you study in 4th year, irrespective of that. I am saying this, whatever the syllabus it has been prescribed, this is the syllabus of 2 courses of mechanics taught in universities. देखिए क्या क्या लिखा हुआ है. 4 टॉपिक लिखा हुआ है. गुड. और याद करना है सबको. मैं कल यही पूछूंगा कि क्या टॉपिक है मैकेनिक्स में, तो हर एक को बोलना पड़ेगा क्या क्या टॉपिक हो, और नहीं बोलोगे तो खड़ा कर दूंगा. मैं सब इसलिए कर रहा हूं कि सबको याद कराना है मुझे व्हाट इज टॉपिक इन द सिलेबस. फर्स्ट स्टेप इन स्कोरिंग गुड मार्क्स is that everybody should know
व्हाट इज प्रेस्क्राइब्ड इनटू द सिलेबस। फिंगर टिप्स में रहना चाहिए, याद हो रहना चाहिए। मैं रोज याद कराऊंगा, मुझे सिलेबस पूरी तरीके से याद है, लेकिन मैं फिर भी रोज पूछूंगा आगे इस मैकेनिज्म में क्या क्या है, पहले चैप्टर में क्या है, ये सब बताओगे मुझे तो समझो। मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, 4 यूनिट्स है, सिर्फ 4 टॉपिक्स है। देयर आर ओनली 4 टॉपिक्स इनटू द सिलेबस, 4। फर्स्ट इज पार्टिकल डायनेमिक्स, फर्स्ट इज आई एम डीलिंग विद द पार्टिकल डायनेमिक्स, पार्टिकल डायनेमिक्स। That is what they are. Particle dynamics means single particle, point particle. I will be studying the motion of point particle, correct? Then I will deal with the system of particles. Next, instead of one particle, I will have the system of particles. Very general. Next chapter, I will study about the motion mechanics. What is the mechanics? Study of motion. What is mechanics? Study of motion. What kind of motions? What kind of motions? Only 2-3 kind of motions. Translational motion due to force. If force acts, what happens? Translation occurs. If torque acts, rotation occurs. So 2 kind of motions, everybody familiar. Translational motion and rotational motion. Translational motion occurs due to force, external force, and rotational motion occurs due to torque. They are starting point. Good. Then there is a to and fro motion also. अगर कोई ऐसा फोर्स है, एक तरीके का अजीब टाइप का फोर्स है जो खींचता है अपनी तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स, देन काइंड ऑफ मोशन इज टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैकेनिक्स में 3 ही तरीके की मोशन होती है ना, हर दुनिया की हर मैकेनिक्स की किताब में यही 3 चीजें होंगी। ट्रांसलेशनल मोशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, रोटेशनल मोशन ड्यू टू टॉर्क, एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, करेक्ट? सो इन मैकेनिक्स वी आर स्टडीइंग दीज थिंग्स, मोशन वी आर स्टडीइंग। First unit we study the motion of single particle, point particle. What we are studying? First point particle. Starting point is that we are studying a motion of particle. Then we extend, instead of single particle we will deal with system of particles. And when we will deal with system of particles, there will be a representative point where the whole system can be balanced. That point is called center of mass. So motion of system of particle will be motion of its center of mass. So second unit, particle dynamics. Second is mechanics of system of particles. Now there is an exclusive system where interparticle distances are constant. System of particle is a broader term, बड़ा शब्द है। System of particles could be any system. Good, molecule, any system it could be. Diatomic molecule, triatomic molecule, polyatomic molecule, earth, sun, solar system, any system, correct? System of particle, correct? Then it could be rigid body. Rigid body is what? That is also system of particles, where interparticle distances are fixed. Good. So इसको 2 पार्ट में बांट देता हूँ. System of particles. Rigid body is a particular system of particles. What is rigid body? It is also system of particles. Rigid body is also collection of infinitely many point masses, where interparticle distances are constant. Correct. So rigid body dynamics. अबे भैया जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के जो सिलेबस में लिखा हुआ है ना, वो बीएससी ऑनर्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक है। यहां पर ऐसे लिखेंगे जे इज इक्वल टू ये ओमेगा, और ये जो आई है ना, ये आई जो है आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई वाई, जस्ट आई वाई जेड, आई जेड एक्स, एंड आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन से डील करेंगे जाके। किससे? आइलर्स। बीएससी में नहीं पढ़ते हैं क्या बीएससी फर्स्ट ईयर में? आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड राइटिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। किसमें लिखना है जी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वहां सिलेबस स्टार्ट हो रहा है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी लिखने के लिए नहीं हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है एंगुलर मोमेंटम ये लिखना है, ये जे इज इक्वल टू दिस, जे एक्स आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, आई एक्स वाई omega y, I x z omega z. Angular momentums are connected by angular velocities by linear transform result. So UPSC का क्वेश्चन आ जाएगा 10 मार्क का. So angular momentum is connected by angular velocity component by linear transform. ये क्या है? कैसा ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है? ओमेगा एक्स ओमेगा स्क्वायर तो नहीं लिखा ना यहाँ पर. दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्म रिजल्ट. अरे जे एक्स लिखूंगा, जे वाई लिखूंगा, जे जेड लिखूंगा, फिर कंबाइंड करके ऐसा लिखूंगा जे इक्वल टू आई ओमेगा. यहां से सिलेबस
स्टार्ट हो रहा है. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी डायनेमिक्स इज आइलर्स थ्योरम. एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, that is the starting point of this. It is not a BSc first year course. वो आपका 11वीं क्लास वाला एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, वो नहीं है नहीं. ये समझ लेना, इसलिए समझना, इसलिए मेरी क्लास जरूरत पड़ती है. दूसरा, ये दोनों जो है इसके बाद वी स्टडी मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूअस मीडिया. Mechanics of continuous media. What is continuous media? Any body where the distribution of mass is continuous. Could be solids, could be fluids. Solids and fluids can be regarded as a continuous media. They are made up of infinitesimally many small elements. Correct? So continuous media. So when there is a continuous media which could be solid or fluids means liquids or gases, fluids, good. Continuous media, mechanics, you apply some external force, what happens? There is some opposition developed, some medium resistance is developed. If you apply some external force or external torque in continuous media, what is developed? Opposition is developed, resistance is developed within that media. What kind of resistances? Two kind of resistances. One is elasticity, by which they try to regain their shape and size, a property called elasticity by which those continuous media tries to gain their shape and size. Another one is viscosity, that is also medium resistance. Correct? So there are two things here. नाम लिखा है mechanics of continuous media. Basically This is a new word, new name. इसको पुरानी भाषा में बोलते थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. बीएससी फर्स्ट ईयर की किताब में लिखा हुआ है ना, बीएससी फर्स्ट ईयर की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ओनली टू प्रॉपर्टीज, 3-4 हो सकती हैं बट ओनली टू प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी. एंड यू हैव टू सी दैट देयर इज कंटिन्यूअस मीडिया. इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंसेस बाय व्हिच दे अपोज, रेसिस्टेंस इज डेवलप्ड विद इन दैट, and by which internal resistances, like you apply some external disturbance, then internal resistances are developed within the body by which they try to regain their shape and size. So we measure that. Mechanics of continuous media, that is simple means क्या है जी, elasticity and viscosity. Third chapter है mechanics of continuous media. Within these three, velocity, because mechanics means motion, motion means momentum, velocity. Velocity in these three chapters. In mechanics, typically bodies are massive. They have got mass. Essential requirement in mechanics is mass. Bodies are having mass. If they are having mass, then the velocities are small. Correct? Zero rest mass, then only they can travel with velocity of light. Good. So their velocities are much less as compared to velocity of light. In all the three chapters, velocities are much less because particles are having mass, maybe huge mass, their velocities are much less as compared to velocity of light. चौथे यूनिट में क्या कर देते हैं, वही है, बॉडी तो वही है, सिंगल पार्टिकल हो सकता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो सकता है, एवरीथिंग कुड बी देयर, बट आई विल ब्रिंग देयर वेलोसिटी कंपेरेबल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट. 0.1 c, 0.2 c, comparable with 10 raised to power 7 meter per second. That kind of velocity I will have. Good. So next, last unit is here. In all the three, velocities are very smaller as compared to comparison with whom? Velocity of light. मतलब 10 raised to power 5 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैकेनिक्स में चली जाएगी. But when it is 10 raised to power 7 onwards, then it is a subject matter of my fourth topic. Fourth topic is called theory of relativity. Good. Theory of relativity are two kinds. Advanced theory, which is called special theory, and another thing, sorry, general theory and special theory. Special theory is 1905, general theory is 1915. Correct? 1915 means advanced theory, and special theory means 1905, simple theory. Good. So in the syllabus we have got only special theory of relativity. What? Special theory, no general theory. Special theory deals with all those frame of references which are inertial.
Good. Not non-inertial frames. Not at all. It is subject matter of general theory of relativity. General theory of relativity is not our subject matter. क्या subject matter हमारा चौथी यूनिट क्या है? Special theory of relativity. इसको शॉर्ट में लिखता हूं क्या? STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. करेक्ट. सो कहां से शुरू किया? मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए पॉइंट पार्टिकल. देन स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. देन एग्जांपल ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ए रिजिड बॉडी. एज ए पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल आई एम गोइंग टू डिस्कस द रिजिड बॉडी. करेक्ट. सो रिजिड बॉडी किया सेम. देन वी गो फॉर इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी. नो सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन पढ़ने में टाइम नहीं लगाना है ही नहीं कोर्स में. कोर्स में सिर्फ क्या है? इलास्टिसिटी है और विस्कोसिटी है. गुड. और चौथा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. अब ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पीपल स्टडी इन बीएससी फर्स्ट ईयर. पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं ना? क्या पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में? क्या क्या पढ़ते हैं? 10 यहीं से शुरू कर रहा हूँ. हाँ, लॉरेंस ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्म. करेक्ट. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्म कॉन्सिक्वेंस. एंड अरे भैया क्या क्या कितने 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 कॉन्सिक्वेंस? कितने हाउ मेनी कॉन्सिक्वेंसेस? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, देन बोलो बोलो, साइमल्टेनिटी, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम 4 हो गए. और बताओ. डेंसिटी ट्रांसफॉर्म 5 हो गए. और बताओ. डॉपलर इफेक्ट 6 हो गए. और बताओ. स्टेलर एबरेशन. करेक्ट. 7 हैं. 7. फिर से क्या? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, साइमल्टेनिटी, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, डेंसिटी ट्रांसफॉर्म, डॉपलर इफेक्ट, स्टेलर. खत्म. 8वां कोई हो तो मुझे बताओ. करेक्ट. ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं. जो अच्छा लड़का होता होगा, अगर थोड़े कम अच्छे हो तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, साइमल्टेनिटी, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम पढ़े हो. 2 नहीं पढ़े हो तुम. स्टेलर एबरेशन बीएससी में नहीं पढ़े हो, छोड़ के आ गए हो स्टेलर एबरेशन. लेकिन यहाँ वो भी लिखा हुआ है सिलेबस में. ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है. करेक्ट. ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है. फिर क्या पढ़ोगे? मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस. ये भी पढ़ोगे. करेक्ट. बस. और क्या पढ़ते हो बीएससी फर्स्ट ईयर में? और क्या पढ़ते हो एसटीआर में? हाँ, 4 मोमेंटम वेक्टर. और क्या पढ़ते हो बताओ? बस इतना ही पढ़ते हो ना. इन्होंने 4 मोमेंटम वेक्टर कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी से. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ा अच्छा है. इन्होंने क्या पढ़ लिया एक्स्ट्रा टॉपिक? मोमेंटम 4 वेक्टर. बाकी कहीं पर भी मोमेंटम 4 वेक्टर नहीं पढ़ा होगा. अब सिलेबस में क्या क्या है? ये सिर्फ आधा है. 50% है एसटीआर का. जरा अभी दिखाऊंगा. अभी सिलेबस बांटूंगा. ओनली इट इज 50% सिलेबस ऑफ एसटीआर. Lorentz transform and its consequences. All 7 consequences are written whatever I told. Lorentz transform and its consequences. Einstein's mass energy equivalence. Correct. Then what? Covariance of equations in physics. Minkowski's word. Minkowski's coordinates. Minkowski's word. Covariance of equations in physics. And then this topic has to be connected with covariance of Maxwell equations. Electromagnetic field tensor. Good. Then application to the decay process. Applications to the decay process. That is what they have written. Good. And 4 vector holistically. Concept of 4 vector. And covariance. 4 vector. How does covariance leads to concept of covariance? Concept of 4 vector. How I am utilizing the concept of 4 vector in building up the covariance of equations in physics. Or how I am going to explain the invariance of basic concept in physics. That is everything is gone. Correct. So BSc वाला जो चीज है ना फर्स्ट ईयर का, वो तो बेटा सिर्फ 2 दिन का है. सिर्फ 1.5-3 घंटे में खत्म. 3 घंटा मैक्सिमम. क्योंकि कितने दिन पढ़ाना है? 90 मिनट्स. 2 बार अगर 90 मिनट्स की क्लास ले ली तो बीएससी फर्स्ट ईयर का सारा all theory of special theory of relativity, all consequences, all derivations of Lorentz transforms and all 7 applications, Einstein's mass energy equivalence finished. क्योंकि अभी जरा समझो. अभी समझोगे. 4 टॉपिक है. 4 टॉपिक है. कितने क्वेश्चन आते हैं मैकेनिक्स से? कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन. गुड. 7 क्वेश्चन. व्हाट इज लॉजिकल? एवरी टॉपिक एट लीस्ट
1 question. Logical, है ना? Logical. Every topic there must be at least 1 question. अब there are 7 questions. That means there must be few topics where there must be 2 questions. Good. So 2 questions from STR. Typically 2 questions from STR, 2 questions from system of particles, 2 questions from particle dynamics, or only 1 question from mechanics of continuous media. Correct? 2, 2, 2, 1. ठीक है, अगर 8 बना दूं, 8 पूछ लूं तो किसी से 3 पूछ लूंगा. That's it. समझ में आ गया? पहले how 7 questions I am going to ask. 2 parts from particle dynamics, 2 parts from system of particles, 2 parts from STR, and 1 part from mechanics of. So why I said only 1 part from mechanics of continuous media? Why I said this? भैया 30-35 साल का पेपर देख रहा हूं और सिलेबस जो लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं है, नथिंग. सबसे सरलतम चैप्टर जो है वो मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूअस मीडिया है, कुछ नहीं है. मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूअस मीडिया, यूनिट 3, BSc फर्स्ट ईयर टॉपिक. BSc फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर का मतलब सबसे सरल वाला फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है. 12वीं के बाद जैसे पढ़ने जाते हो ना, यही पढ़ते हो, मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूअस मीडिया. 2 टॉपिक मैंने बांट दिया इसको, इलास्टिसिटी एंड, अब गलती से भी सरफेस टेंशन मत पढ़ना, सिर्फ 2 ही पढ़ना है, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी. ठीक है जी. इस क्लास में कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया? सब ने ले लिया. ठीक है जी. अब याद रखो, अभी 3 चीज़ें 4 चीज़ें डिफाइन करी ना क्लास को, याद हो गई ना क्लास क्या है मेरी? अब सिलेबस बताइन कर रहा हूँ. ये मेरा एंट्री परमिट है. क्या है? एंट्री परमिट. क्या है? क्लास का क्या है? एंट्री परमिट. आइडेंटिटी कार्ड है, नाम लिखो इस पे अपना. क्या लिखो? नाम. आइडेंटिटी कार्ड है, रोज लेके आना है, रोज, और तब तक लेके आना जब तक याद ना हो जाए. दूसरी साइड जो लिखा है उसको याद करना होता है, वर्ड बाय वर्ड. करेक्ट? तो यहाँ लिखो, इसके 4 फोटो कॉपी कराओ चाहे भले ही, और हर कॉपी में चिपका लो, काट काट के यहाँ से मैकेनिक्स का कॉपी में चिपका लो. करेक्ट? तो सबको बांटे दे रहा हूं, कृपा कर रहा हूं, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है, सबको बांटे दे रहा हूं. क्लास यहां से शुरू हो रही है. जब तक एंट्री परमिट नहीं देता हूं तब तक क्लास. अभी जहाज कहां है? खड़ा हुआ है. अभी तो तुम टिकट कटा रहे हो, समझ रहे हो जी? एयरपोर्ट में गए हो, अभी जहाज दौड़ा ही नहीं है, अभी तो रन ऑफ में नहीं है, अभी दौड़ा नहीं है. जब दौड़ेगा ना तब भी 300 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे होगा. 380 की स्पीड में टेक ऑफ करेगा. जब उड़ेगा ना तो लग गया फ्लाइट टेक ऑफ हो गई. जब मैं सिलेबस पढ़ाने लग जाऊं तब तुमको लग गया क्या हो गई? फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, जहाज उड़ गया आएगा. जब जहाज उड़ेगा ना बहुत मजा आएगा. हाँ, शुरू का 5-10 मिनट ऐसे हिलेगा थोड़ा बहुत. गुड पायलट इज टू बी जज्ड ओनली बाय 2 थिंग्स. हाउ डज ही टेक्स ऑफ, टेक ऑफ कैसे करता है, और लैंडिंग कैसे करता है. लैंडिंग ही बड़ी कठिन प्रोसेस है. जहाज उतरने का जो आखिरी का 15 मिनट होता है ना, वो पायलट की पूरी एक्सपर्टीज का टेस्ट है. और कैसे टेक ऑफ कर रहा है वो भी एक्सपर्टीज का है, क्योंकि जहाज हिलता है, टर्बुलेंस होती है. और उसके बाद जैसे ही 15 मिनट के बाद जहाज क्या हो जाता है? एकदम स्मूथ फ्लाइट है, स्मूथ लगेगा फ्लाइट में आ गए हो. गुड. लेकिन एक चीज और उसके साथ मोशन है कि जहाज में बर्ड हिट नहीं होता है. अगर कोई बर्ड हिट कर दे, कई सारे एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट घटिया क्वालिटी के होते हैं. एयरपोर्ट्स आर आल्सो ऑफ बैड क्वालिटी. व्हेन देयर इज अ बर्ड्स, कोई ईगल को रोक सकता है, कोई चील को रोक सकता है, बाज को रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है. वो जब जहाज से भिड़ जाता है तो क्या होता है? क्या होता है बताओ? दैट आई कॉल बर्ड्स हिट. Airport is of bad quality. If airport is of bad quality, they may be surrounded by birds. Good. And if the birds come in the path of flight, what will happen? Will the aircraft crash? Will the pilot allow the aircraft to be crashed? Not at all. So क्या होगा? Bird मर जाएगा, burn out. Good. And पायलट को तो जहाज को बचाना ही बचाना है. पायलट का काम क्या है? जहाज को बचाना.
तो बीच में जब तक जहाज रिफ्यूलिंग के लिए न रुकेगा, कोई क्वेश्चन वेश्चन नहीं पूछता मेरे से। ध्यान रखना, बड़ी चीज बता दी, क्योंकि मैं उसको क्या कहता हूं, व्हाट आई विल कॉल, क्या हो गया क्लास में, बर्ड सीट हो गया। आई नेवर टॉलरेट बर्ड सीट्स। आई एम हाईली एक्सपीरियंस पायलट, ये ध्यान रखना, इसलिए पहले दिन से बता रहा हूं, हाईली एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस आदमी नहीं है। मैं बर्ड सीट को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता, लेकिन जहाज क्या है, बहुत बार रिफ्यूलिंग के लिए रुक जाता है। आधा घंटा 15 मिनट बाद कहूँगा जो चाहो सो पूछ लो, 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद हो सकता है मैं कहीं रोक दूं, भोपाल में फ्यूल कम हो गया, रोक दियो जहाज को। आई विल आस्क, जो खाना हो खा लो यार, जो पूछना है पूछ लो, लेकिन बर्ड सीट नहीं, बर्ड सीट नहीं, क्योंकि जहाज कितने मोमेंटम में उड़ रहा है, 1250 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड है, इतना वजन है, तो उसमें क्या हो गया बताओ, फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या है उसके पास, ह्यूज मोमेंटम है, ह्यूज मोमेंटम। जब फ्लाइट पीक में उड़ रही है तो कितना मोमेंटम है, उस मोमेंटम में अगर हिट कर दिया तो क्या किया तुमने, सिर्फ बर्नआउट हो जाओगे, जला दूंगा तुमको पूरी तरीके से। हिम्मत नहीं है क्वेश्चन पूछ लो, समझ रहे हो, तुमको ही घेर दूंगा मैं और तुम ही से उत्तर निकलवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछोगे अगली बार। पहले दिन बता दिया मैंने, तो क्या कहा मैंने इसको, बर्ड सीट। आई एम एक्सपीरियंस पायलट, आई विल गिव यू हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मुझे आपके जितने डाउट्स हैं सब उससे ज्यादा आता है, पूरी जिंदगी गुजर गई है मुझे इस बात पे, और मुझे अगर नहीं आता है तो जरूरत नहीं है मुझे आने की। और मैं तो बड़ी बात बता दूं, मैं उन लोग उस लेवल पे खड़ा हुआ हूं, मुझे आपके सर्टिफिकेट से कि मुझे फिजिक्स आती है या नहीं आती है, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आज की डेट में। गुड, मुझे इतना जरूर आता है, आपके जैसे जाने कितनों की क्वेरी आंसर करिए, मुझे प्रॉपर टाइम होता है हर क्वेश्चन का, क्योंकि मैं अपने हिसाब से टॉप चैप्टर को कितने मिनट, 90 मिनट में खत्म करना है मुझे। मैं वेल डिफाइंड हो गया, मुझे यहां तक पढ़ाना है आज की क्लास में। अगर बर्ड सीट हो गया, क्लास इधर से उधर डेविएट हो गई, तो डेविएशन में क्या होगा, जो क्लास डिलीवर करनी थी, जो टॉपिक खत्म होना था, टॉपिक नहीं होगा। और मैं इसको बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, डेडलाइन क्या है बैच की, 31 अक्टूबर, 5 नवंबर से 10 नवंबर से नया बैच ड्यू है। आपको आगे से बता दे रहा हूं, 5 नवंबर या 10 नवंबर से अभी से एडवर्टीजमेंट डालूंगा, नेक्स्ट बैच स्टार्ट फ्रॉम 10th नवंबर। और मुझे बीच में कहीं बंबई भी जाना पड़ेगा, कहीं और भी जाना पड़ेगा। कब जाऊंगा मैं, कब जाऊंगा, जब बैच खत्म हो जाएगा। बैच के दौरान मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। ये जितनी आपकी साधना है उससे ज्यादा मेरी साधना और तपस्या। मेंस को पढ़ाना बहुत कठिन काम है। मैं 5 महीने के लिए बुक हो गया हूं, कहीं नहीं जा पाऊंगा। जब बैच चालू हो गया ना, कैन आई गो एनीवेयर, एवरी डे इज डिफाइंड। कौन से दिन में कौन सी टॉपिक खत्म, 1 से 10 क्लास टॉपिक खत्म करने हैं मुझे। कैसे खत्म होगा वो, आई विल नॉट बी गोइंग एनीवेयर, आई एम फिक्स्ड इन दिल्ली, फिक्सेटेड इन दिल्ली। तो मुझे कहीं जाना तो कब जाना, जो 31 अक्टूबर से लेकर जो 10 नवंबर के बीच का टाइम है, मेरे सारे एंगेजमेंट वहीं लगेंगे। जितने भी मुझे बुलाएगा, बॉम्बे आ जाओ, बेंगलोर आ जाओ, फला जगह आ जाओ, गुवाहाटी आ जाओ, I will, other than Delhi, I will not be able to go anywhere. So my next batch is already well defined कि मुझे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से मेरा अगला बैच लगना है। इसका मतलब इस बैच को खत्म हो ही जाना है। और बैच को खत्म तुम्हारे लेवल से नहीं, तुमको तो मालूम ही नहीं कुछ क्या क्या पढ़ना है। तुमको तो मैं कहीं भी एंगुलर मोमेंटम 12वीं क्लास का पढ़ा के चला जाऊं, तुमको थोड़ा मालूम है कि उसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया टेंसर पूछेगा एग्जाम में। हो अगर मैं पेपर ना दिखाऊं तो 90% लोग जीएस का पेपर ही नहीं देखते, 95% लोग कोचिंग कर लेते हैं, लेकिन मालूम ही नहीं कि क्या पूछा जाता है एग्जाम में। हम आपको पहले दिन से दिखाएंगे कि आईना दिखाएंगे पहले दिन से कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। जो पूछा जाता है वही पढ़ाते हैं। गुड। सो सब क्या डिफाइन कर रहा था, मैं बता रहा था सबसे सरल क्या है, सबसे सरल ये चैप्टर है। और मैं एक टॉपिक को इलेबोरेट, आई वाज इलेबोरेटिंग ओनली वन पॉइंट। व्हाट आई वाज इलेबोरेटिंग, syllabus is very well defined. How I said very well defined? Horizontal and vertical spread. To elaborate this topic, this point that syllabus is very well defined, I am taking chapter called Mechanics of Continuous Media. I will just interpret this and class is concluded. Today's class is concluded. Before that, actionable point is that everybody should take one copy of क्या सिलेबस नहीं, क्या कहा मैंने, एंट्री परमिट रोज लेके आना है। क्या एंट्री परमिट, लो उधर लेके आधे बांट दो, आधे उधर बांटो।
एक, अरे बेटा बैठो, कुर्सी में बैठो, चेयर में बैठो, सिस्टम को यूज करना। ट्राई टू यूज द सिस्टम एफिशिएंटली। व्हाट इज एफिशिएंसी? गिव वन टू हर, एक उसको दो, एक इनको दो और बाकी सारे पीछे दे दो। ऐसे ही बाकी भी करेंगे। ट्राई टू सी एफिशिएंसी। एक ले लो और बाकी सबको बांट दो, एक ले लो बाकी जस्ट पास पास। विद इन 2 minutes एवरीबडी विल हैव, because without having the copy of syllabus I cannot talk. हाँ तो you have got wrong, एक्स्ट्रा होगी कोई, देखो एक ले लो, just send him, give it. So well defined. Try to understand how I am going to complete paper 1. Mechanics, how many classes I will conclude A to Z of mechanics? 16 classes. Waves and optics, 17 classes. Electricity and magnetism, 16 classes. Thermodynamics and this, 16 classes. How many classes total? देख लीजिए, count कर लीजिए, not interested. Count कर लीजिए, ये this is a plan. It is a tentative plan. That is how I will cover A to Z. 16 क्लास लिखी है तो ज्यादा से ज्यादा 18 होगी, 18, not more than that. And 18 classes, that too, and today's class is 0 class. Today's class is 0 class. 0 class means it is not counted towards syllabus. I didn't teach any topic mentioned into the syllabus. Until unless I will teach the topics mentioned into the syllabus, I will call class as 0 class. तो 0 class जोड़ के 18 हो जाएगी, otherwise 16 classes. Read. क्या कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ मैं? What is the objective? What I am doing? What I am doing? I am elaborating only one point, explaining one point. Try to understand what I am doing. I am elaborating, elaborate. Do you know what do I mean by elaboration? I am extending, I am exposing, I am broadening the purview of only one point, explaining horizontal and vertical spread of the syllabus, which is well defined. क्या कह रहा हूँ? Very well defined horizontal and vertical spread. जैसे एक illustration के लिए 1 unit I am taking. Every unit is so well defined. Every unit and nothing has to be missed. अगर 7 टॉपिक हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्म के, 7 consequences have been given, then all 7 consequences you must know. ये नहीं कि you do not know coherence of equations in physics or you do not know something. Whatever has been mentioned, everything has to. Stellar aberration you need to know. ये नहीं कि stellar aberration छोड़ के चले गए, वहां तो derivation आ गया. Question was asked on stellar aberration and you have done, you have omitted, क्योंकि था नहीं आपकी किताब में. वो नहीं चलेगा. जो अगर लिखा हुआ है सिलेबस में तो याद करना है. That is what I am elaborating. I am explaining this point by the simplest, because this class I am going to conclude in just 2 classes. 2 क्लास हैं सिर्फ इसमें. इसको सिर्फ मैं दो क्लास में खत्म करूंगा. ठीक है? पूरा कोर्स कितने में खत्म कर रहा हूं? 16 में. STR 4 क्लास में. 4th यूनिट कितनी क्लास में? 4 क्लास में. ये कितनी क्लास में? 2 क्लास में. 4 और 2 6. करेक्ट? पहली यूनिट 6 क्लास में, दूसरी यूनिट 4 क्लास में. पहली यूनिट 6 क्लास में, दूसरी यूनिट 4 क्लास में, तीसरी यूनिट 2 क्लास में, आखिरी यूनिट 4 क्लास में. हो गया? 6 4 10 4 16 हो गया ना? बताओ कितना वेल डिफाइंड है. अब ये कैसे कर दिया, इसको 6 कर दिया 4 कर. भैया 6 का मतलब 2 से 3 पार्ट्स आएंगे इसमें से. इफ आई एम डिवोटिंग 6 क्लासेस, दैट मीन्स हाउ मेनी पार्ट्स आई एक्सपेक्ट? 2 to 3. Here 2, here 1, here 2. That is why that is how I am devoting time. I am devoting, and I will be able to do justice with the syllabus. Within 4-6 classes, I will be able to do whatever is given into the first unit. Whatever is given into the second unit, I will require 4 classes. Whatever is given into the third unit, how many classes? 2 classes. Correct? कुछ नहीं. 1 class for elasticity, 1 class for viscosity. Good. And what I am saying, syllabus is very well defined. देखो भैया क्या लिखा है, बताओ इसका पढ़ो. Read what is written. What is written in the unit 3? What is written into the elasticity?
elasticity definition. Elasticity is a property. When you apply some external forces to any system, internal resistance are developed. Correct? Internal resistance per unit area are called stresses. Response of stresses are strains. Response of stresses are strains. But what you have done, you have subjected any system to some external forces. When you have applied some external forces, there are opposing forces developed inside the system. Internal forces are developed. Those, if the medium is continuous media, could be solid or could be fluid. When it is continuous media, which could be solid or fluid, then this response of the system has to be measured per unit area, and then we call force, normal force per unit area, we could have called pressure, external, but internal, if internal force, it is resistance which has been developed per unit area, we call it stress. Correct? Stress is the cause, effect is strain. Good. Hooke's law, कहाँ से शुरू है सिलेबस? Hooke's law. Correct? Hooke's law. Then आगे elastic constants of an isotropic solid and their finished. और कुछ है क्या? और कुछ है उसके बाद? नहीं है. यही है ना? अरे अच्छे से पढ़ लो, यही है ना? इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी का नाम है, और हुक्स लॉ कब का है? 1675 का है. ये ध्यान, ये अगर ये याद आ गया तो बहुत कुछ मालूम पड़ गया. हुक्स लॉ कब का है? 16. और कैलकुलस की खोज कब हुई है? डिफरेंशियल कैलकुलस कब आया? न्यूटन का लाइफ टाइम कब है? 1642 में न्यूटन जी पैदा हुए थे. कब पैदा हुए थे? 1642. याद रख लेना. न्यूटन का बर्थ ईयर कौन सा है? 1642. And when he died? When he died? अरे तो कुछ ना कुछ तो चीजें याद रखो भैया. होलिस्टिक इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. 1715, 1720 के आसपास मरे हैं. ठीक है जी. 1642 में पैदा हुए. कैलकुलस किसने खोजी? न्यूटन ने. तो उसका मतलब कैलकुलस नहीं हुई होगी 1675 में. अगर कैलकुलस नहीं हुई होगी तो डिफरेंशिएशन वगैरह भी नहीं हो सकता. करेक्ट? तो लॉ कैसा होगा? सिंपलेस्ट होगा. हुक्स लॉ में कोई मैथमेटिक्स नहीं होगी. सबसे बड़ी बात हो गई, समझ में आ गई कि हुक्स लॉ में कोई होगी नहीं, कोई डेरिवेशन होगा ही नहीं. कुछ नहीं है यार. स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द लिमिट ऑफ, एक उसमें पूंछ लगा दिया, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी. स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. इसके अलावा कुछ नहीं. एक डायग्राम वो पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले, ऐसे ऐसे दिखे, वो बना दो. स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. करेक्ट? अब टॉपिक में क्या लिखा देखो. इससे बढ़िया सिलेबस हो ही नहीं सकता यार. क्या लिखा है? इलास्टिक कांस्टेंट्स ऑफ एन आइसोट्रोपिक सॉलिड एंड देयर. सिर्फ 4 होते हैं, 5वां नहीं है कोई. वाई के ईटा सिग्मा. यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस. एक डायमेंशन में इंफ्लुएंस देखना तो यंग्स मॉडुलस, तीनों डायमेंशन में देखना तो बल्क मॉडुलस. फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और एक रेशियो है पॉइसा रेशियो. रेशियो का मतलब ही डायमेंशनलेस हो गया. लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. 4 ही कांस्टेंट है, 5वां कांस्टेंट कोई नहीं है. करेक्ट? और रिलेशनशिप हमेशा कैसे होती है? कभी 4 के बीच में रिश्तेदारी होती है क्या? रिश्ता किसके, या तो 2 के होता है या 3 के होता है. तो कभी 4 के बीच में रिश्ता नहीं हो सकता. तो रिश्ते किसके बीच में होगा? सिर्फ 3 के बीच में होगा. ये लो, y 2 डेरिवेशन है सिर्फ. क्या? सिर्फ 2 डेरिवेशन है. y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा. y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा एंड y इज इक्वल टू 2 ईटा. बस सिलेबस अच्छे से पढ़ो. इसके अलावा कुछ है क्या? यही लिखा है ना. इलास्टिक कांस्टेंट मतलब डेफिनेशन बनानी है कि यंग्स मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है. ईटा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. सिग्मा मींस पॉइसन रेशियो. 4 ही कांस्टेंट है एंड सिलेबस इज इंटर रिलेशन बिटवीन देम. 2 डेरिवेशन करना है. y के सिग्मा, y ईटा सिग्मा. 5 मिनट में ये खत्म, 5 मिनट में ये खत्म. 10 मिनट में डेरिवेशन कर सकता हूं मैं. अगर मुझे खुद करना हो तो 5 मिनट में दोनों कर दूं बोर्ड में. ठीक? 5 मिनट का एक डेरिवेशन और फिर 1.5 घंटे क्या आंकना है. सब इंट्रोडक्शन उठाना है क्लास को.
उठाना है, वो डायग्राम बना देना है, पेपर के क्वेश्चन करा देने हैं। टॉपिक समझ रहे हैं, सिलेबस कितना वेल डिफाइंड है, और कुछ नहीं लिखा उसमें, उसमें रिजिडिटी नहीं लिखी, टॉर्सन नहीं लिखा, वो बेंडिंग है बीम्स नहीं लिखी। मैं सिलेबस को कितना भी बड़ा कर सकता हूं, लेकिन है नहीं। अगर सिविल इंजीनियरिंग पढ़ के आए हो तो देखा होगा ना मैं क्या क्या है, बेंडिंग है बीम्स, कैंटिलीवर बीम, और कुछ भी बना सकता हूं, लेकिन है नहीं। सिलेबस में क्या लिखा है? सिर्फ इलास्टिक कांस्टेंट्स ऑफ एन आइसोट्रोपिक सॉलिड एंड देयर इंटररिलेशनशिप। इंटररिलेशन मतलब सीधा डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, इनकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। बल्क मॉडुलस क्या होता है, 5-5 मिनट में डेफिनेशन बताएंगे, चारों की 20 मिनट। पॉइसन रेशियो की लिमिट फिक्स करेंगे, हाफ से कम है और -1 से ज्यादा है, माइनस हो नहीं सकता, तो 0 to 0.5 के बीच में है, गुड, और ये डेरिवेशन कर देंगे, 1.5 घंटे में खत्म। उसमें क्या है, दूसरे वाइस्कोसिटी में क्या है, कुछ नहीं, पॉइजलेज फार्मूला है, ओनली पॉइजलेज फार्मूला है। रेनॉल्ड नंबर, स्ट्रीमलाइन फ्लो, रेनॉल्ड नंबर बताना है, वो भी नंबर ही है, रेशियो ही है, 2 फोर्सेस का। पॉइजलेज फार्मूला, बर्नौलीज थ्योरम, स्टोक्स लॉ, बस स्टोक्स लॉ वही 12वीं क्लास का, 11वीं क्लास का, कोई डेरिवेशन उसका है नहीं, है नहीं ना, है नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं है, डायमेंशनल एनालिसिस से निकाला गया था, 11वीं में भी वही पढ़ा था, आगे भी वही पढ़ेंगे। अब उसको लगा के जरा वो टर्मिनल वेलोसिटी जो एप्लीकेशन है वो कर देंगे, फिनिश्ड, कुछ नहीं। क्या पूछ सकता हूँ यार, क्या पूछ सकता हूँ बताओ। 11वीं क्लास का एक्सटेंशन है, एक सिर्फ पॉइजलेज फार्मूला है, वो भी 11वीं में पढ़ लेते हैं बहुत सारे लोग, Q = पाई PR 4/80 टाइल। अब मुझे फार्मूला नहीं याद है तो भाई कैसे चलेगा यार, फार्मूला तो फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए, पाई PR 4/80 टाइल। अब उसमें क्या है, कैपिलरीज इन सीरीज, कैपिलरीज इन पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व, फार्मूला सब्स्टिट्यूशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इस एग्जाम में जितने न्यूमेरिकल हैं 99.99% न्यूमेरिकल मेरी नज़र में क्या हैं, ये भी वर्ड याद करना मेरा, फार्मूला सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स। कैसी हैं, फार्मूला सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम विद योर जनरेशन इज दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड थ्योरी। और जो फिजिक्स का बड़ा टीचर होता है ना, प्रोफेसर, PROF, एकेडमिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी पोस्ट होती है क्या, प्रॉफ। 43 की एज का आदमी होता है, 40 की एज में लोग प्रॉफ बन जाते हैं। हाँ, और प्रॉफ सिर्फ क्या करता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ाता है। प्रॉब्लम सॉल्व कौन कराता है, ट्यूटर। ट्यूटर जो बीटेक 4th ईयर का है या एमटेक करने वाला स्टूडेंट है, उसको टीचर क्या बना देता है, प्रॉफ, ट्यूटर। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्यूटर आता है, और प्रोफेसर क्या करता है, सिर्फ थ्योरी के बारे में बात करता है। जितना बड़ा टीचर है उतनी बड़ी थ्योरी के बारे में बात कर रहा होगा। थ्योरी समझ गए तो न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, दे आर नथिंग। एवरी प्रॉब्लम आई विल सॉल्व इन द क्लास प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड व्हाट, थ्योरी। थ्योरी इज क्रिस्टल क्लियर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर नथिंग, फार्मूला सब्स्टिट्यूशन। मेरी क्लास यूनिसन में एकदम यूनानिमसली होल क्लास सेज, जब मैं न्यूमेरिकल करता हूं ना, रीड करता हूं क्लास में ट्यूटोरियल शीट के बाद, तो क्लास एक शब्द में बोलती है प्रॉब्लम कैसी है, फार्मूला सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम। मैं यही पूछना सुनना चाहता हूं कि प्रॉब्लम कैसी है, फार्मूला सब्स्टिट्यूशन। यू विल बी एबल टू सब्स्टिट्यूट। फार्मूला अगर याद है सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, हो जाएगी। आप कहोगे हो जाएगी तो हो गया, 10 मिनट में पूरी सीट खत्म। 15 साल के क्वेश्चन कितने मिनट में खत्म कराता हूं, 10 से 15 मिनट में। समझ जाना, इस तरीके से क्लास फ्रेम करी गई है। द वे आई हैव फ्रेम द इंटायर क्लास, the way I am lecturing, the way I am contents I have covered, they have been covered in such a way that whole tutorial sheets of a particular topic I am not going to take more than 10 to 15 minutes। जहाज लैंड कर गया है, लैंड करने के बाद जो बाहर निकल रहे हो ना, बाहर टर्मैक से जब सामान लेने जा रहे हो, उतने मिनट में ट्यूटोरियल शीट सॉल्व करा देता हूं। ट्यूटोरियल शीट, क्योंकि ट्यूटोरियल शीट्स आर नथिंग, they are the formula, either theory, either theoretical derivation or formula substitution numerical problem. And in my eyes there is no difference between theory and numericals. If you know theory well, all numericals can be solved. People are not able to solve numerical problems because they are not clear about theories. फार्मूला याद करने की कोशिश करते हैं, theory के बैकग्राउंड में नहीं जाते हो, theory क्यों डेवलप हुई है, उसका क्या लॉजिक है। गुड, हम आपको फिजिक्स का क्या सिखाएंगे, क्या सिखा रहे हैं, आनंद लेना। क्या, टू इंजॉय फिजिक्स, मेकिंग लर्निंग ऑफ फिजिक्स एज एन इंजॉयबल एक्सरसाइज। ठीक है जी, आज की क्लास खत्म, सो इज फिनिश्ड।
ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना? भाई साहब जितना भी कहा है, डरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत फ्रेंडली आदमी हूँ भाई साहब, ये बात ध्यान रखना। एक बात मैं बताऊँ, क्योंकि ये मेरे बहुत प्रिय हैं, इनको इस क्लास में सिर्फ इन्हीं को जानता हूँ। इनका नाम है विकास स्वामी। ये जब मेरे पास आए तो इनको देख कर मैं बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ बता देता हूँ। ये IIT बॉम्बे के जनरल सेक्रेटरी हॉस्टल अफेयर्स हैं, इलेक्शन लड़के जीते हैं। IIT में एक बड़ी पोस्ट होती है जनरल सेक्रेटरी, 4 IIT बॉम्बे में 4 जनरल सेक्रेटरी होते हैं। एक वो सबसे बड़ा होता है, सबसे सीनियर होता है जनरल सेक्रेटरी एकेडमिक अफेयर्स, जो मैं रहा हूँ, GSAA। उसके बाद होता है GSHA, फिर होता है GS कल्चरल, और फिर होता है GS स्पोर्ट्स। अभी शायद एक कोई और हो गया है, मेरे टाइम में 4 होते थे। जो IIT में GS होता है वो आज की डेट में 8 है। मेरे टाइम में 2800 लोग थे, 2800 लोग वोट डालते थे तब वो जीतता था, किसी की कृपा पर नहीं जीतता था। इसलिए इनको जब आए तो GSHA इनके साथ मैंने अपने को अपडेट किया कि भाई साहब अभी IIT में क्या चल रहा है, कैसे लोग चुनाव लड़ते हैं, क्या करते हैं, कैसे पोस्टर लगाते हैं, सब मैंने इनसे पूछा। मुझे खुशी हुई, मुझे खुशी हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्ज़ाम बहुत सरल है, एनर्जी का एग्ज़ाम है, आराम से एग्ज़ाम पास होगा। तो ये क्या है, जो नेता, मैं क्या बात क्या कह रहा था, जो नेतागिरी करते हैं बहुत फ्रेंडली होते हैं। जो नेतागिरी करके आते हैं, ऑफिसर के लिए फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, ब्यूरोक्रेट लाइन खींच के रखता है। और मैं इसीलिए पास नहीं हुआ। 105 नंबर क्यों मिलेगा बता दूं आपको मैं, आपको इसलिए उल्टा लटकना पड़ेगा। मेरा एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा कि जो नेता होता है उसके साथ बहुत सारी चीजें होती है। नेता का मतलब हर एक के साथ बात करना और हर चीज में डिसीजन लेना। लीडरशिप के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है डिसीजिवनेस, यू हैव टू टेक डिसीजन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। बट फॉर ब्यूरोक्रेसी यू नीड नॉट बी डिसीजिव। ब्यूरोक्रेट कैन नॉट बी जजमेंटल। ब्यूरोक्रेट में आपको प्रॉस भी होलिस्टिक आंसर चाहिए, बैलेंस आंसर चाहिए। आई विल एक्सप्लेन दिस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। Whenever I ask something about reservation policy, if you are writing an answer in this exam, there are certain pros for it, certain cons for it, certain positivities are there, certain negativities are there. And what will be the conclusion? What will be the need of the time? During that time, looking at the geographical area, किस geographical area में आप decision ले रहे हो, and what point of time you are taking a decision, decision will be taken by political executive. Decision will not be taken by the bureaucrat. So bureaucrat को क्या लिखना है? There are certain points which are in favor, there are certain points which are negative. So आपको एक बैलेंस आंसर लिखना है। ये नहीं कि सब प्रॉस लिख देना है या सारा कॉन्स लिख देना है, और अगर आपने प्रॉस लिख दिया और मैं एंटी रिजर्वेशनिस्ट हूं या प्रो रिजर्वेशनिस्ट हूं तो आपको तो 0 दे दूंगा मैं। तो ब्यूरोक्रेट का आंसर बैलेंस आंसर होता है। और नेता को क्या करना होता है? स्टैंड लेना है। भाई साहब मेरा वोटर कौन, मुझे देखना है मेरा वोटर कौन। प्रो रिजर्वेशनिस्ट तो जय भीम, ठीक है जी। रिजर्वेशन की बात करूंगा, हाँ बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है भाई, तो वही दिलाऊंगा तुमको। अगर मेरा वोटर रिजर्वेशन वाला है सारा और मेरा वोटर रिजर्वेशन का नहीं है, भाई साहब बहुत बुरा है। गुड। अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया तो मुझे कोई वोट देगा क्या? कोई नहीं देगा। तो नेता के लिए क्या जरूरी है? डिसीजिवनेस। हर जगह डिसीजन लेना है आपको। ब्यूरोक्रेट के लिए जरूरी नहीं है, ये बड़ी चीज है। ब्यूरोक्रेट के लिए जजमेंटल, you cannot pass a judgment on any policy. Who will pass a judgment? Political leadership. That is why we the people are important in political system. I will explain. जब मैं कभी बताऊंगा तब GS से पढ़ा का मैं सेमिनार लूंगा तब एक्सप्लेन करूंगा what is the significance of we the people. So why we the people is very powerful. How political executive differs from bureaucratic executive. There are 2 executives. Political executive top है, then your bureaucracy, permanent executive. Correct. So today's class is concluded. We will meet tomorrow same time, same place, same time, same place. Thank you.